Learners, welcome to ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର। Learners, ତୁମମାନଙ୍କର LTR mains exam, SSD exam ଏବଂ other TET, TGT exam ପାଇଁ ଆମେ pedagogy evaluation ର practice series କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100ରୁ ଅଧିକ question କୁ practice କରୁଥିଲେ, ତାର extension କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର exam ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତୁମମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବି। ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ 5ରୁ 7ଟା ଲେଖା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଏବେ କଭର ଅପ୍ କରିଦଉଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୁଣି କଭର ଅପ୍ କରିବା ପିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ମୁଁ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାରିଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ନ ଦେଖିଛ ତୁମମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ କଭର କରିଦିଅ। ଆମେ ସିଲାବସ ୱାଇଜ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ସାରିଥିଲେ। ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ରେ କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ କୁ ସାରିଛେ, ଲେଭାଇଗର୍ସ କୁ ସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ପିଲେ ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି, ମୋଟିଭେସନ ହଉ, ମ୍ୟାଚୁରେସନ ହଉ, ରେଡିନେସ ହଉ, ମେଥଡ୍ସ ହଉ, ଟାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ସ ହଉ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ସାରିବା ପିଲେ ଆଜି। ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ୟୁନିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାନେ 140ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। 140ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା, ବହୁତ ସାରା ଏରିଆକୁ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ ର ଥିଓରି, ତୁମମାନଙ୍କର ରେଡିନେସ କୁ ଆଧାର କରି ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଓରି, ତା ଦେହରେ କଣ ସବୁ ଏରିଆସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମେଥଡ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମେଥଡ୍ସ, ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଜି କଭର ଅପ୍ ହବ ତୁମମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି କି ତୁମମାନେ ଆଗ ଯାଇକି ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଟା ଦେଖି ରଖ। ସେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଦେଇଦେବି। ତମମାନେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆଗ କଭର ଅପ୍ କରିଦିଅ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କଭର ଅପ୍ କରିବି। ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତମମାନେ ଖାତା ଧରି ବସିଥିବ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଦବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ତମମାନେ ଯେତେଟା ବି ତମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ 140, ସେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଥିବ କି 140 ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲି, କେତେଟା ଠିକ କଲି, 100% ଠିକ କରୁଛି ନା ଠିକ କରୁନି, ବା କୋଉଠି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ତମମାନେ ମେନସନ କରିବ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତମମାନେ ଆଗକୁ କାମ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ପିଲେ ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 48 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 48, 49, 50, 51, 52, 53 ଆଉ 54 ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏ 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା, ଯୋଉଥିରେ 140ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 48, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ଯଦି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କାହାର କିଛି ପିଲେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବା କାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତମମାନେ ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ ପଚାରି ପାରିବ ବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଲାଇଭ ସମୟରେ ପଚାରି ପାରିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ତୁମମାନେ ପିଲେ ଏଇ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ମେନସନ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले आंसर करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन रादर देन लर्निंग प्ले। आधर कोउटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन, आधर परिपक्वतार कोउटा गोटे पिले वैशिष्ट्य कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहूचे। व्हाट इज मैच्योरेशन पिले? परिपक्वता कहले तुम माने कोन बुझुचो? आ परिपक्वतार कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स तुम मानक मु कहितली, मु तुम मानक कहितली मैच्योरेशन एज ए कंडीशन फॉर लर्निंग। तो सेही दृष्टिकोण तुम मानक क्वेश्चन गोटे मैच्योरेशन रू आंसर करा आगो तुम माने, तापर हमें आगो बाय आधर कोउटा गोटे मैच्योरेशन रू प्रैक्टिकली कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग रे सेटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे। सर ऑप्शन सी ऑटोमेटिक प्रोसेस। आपण कहितले मैच्योरेशन होची गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस, मैच्योरेशन होची गोटे नेचुरल प्रोसेस, यो गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। लर्निंग टा बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, मैच्योरेशन इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी। लर्निंग रिक्वायर्स मोटिवेशन, बट देयर इज नो नीड ऑफ मोटिवेशन, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग फॉर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन पे कौन सी ट्रेनिंग मोटिवेशन आवश्यकता पड़ न थाए। लर्निंग हो गोटे कॉन्शियस प्रोसेस, व्हेयरएज मैच्योरेशन होची अनकॉन्शियस प्रोसेस, गोटे अनकंट्रोल्ड एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। तो माने एतिक मन रख पिले मैच्योरेशन रो अर्थ कोन ना, सर मैच्योरेशन होची एज स्पेसिफिक नेचुरल एंड इंटरनल डेवलपमेंट। निर्दिष्ट बयस रे घटुथिबा स्वाभाविक अंत परिवर्तन हेउची परिपक्वता। whether the child able to do certain tasks in a certain stage of development। गोटे स्टेज रे व्यक्ति जेउ जेउ कार्य गुडी करिवार आवश्यकता, जदि से कार्य गुडी से करि पारुथिबो, आमे कहबा तार परिपक्वता तार मैच्योरेशन हेची। तेनु करते मैच्योरेशन रे मन रखिबो गोटे सिंगल टर्म रे से होची एज स्पेसिफिक नेचुरल इंटरनल डेवलपमेंट। ये होची एज स्पेसिफिक,
देयर इज एज लिमिटेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन पांचटा कैरेक्टरिस्टिक्स कोच मैच्योरेशन मन रख परीक्षा पचारे आराम से ताको देखिबो ध्यान रखिबो कौन ना सर मैच्योरेशन होची प्रथम हला बेस्ड ऑन हेरिडिटी जो मानु थियोरी क्लास करथियो भलसे बुझिथियो बेस्ड ऑन हेरिडिटी नेक्स्ट कौन पिले ना मैच्योरेशन हला गोटे तार एज लिमिट थाई पिले कि आमे देखिबा कि एडोलेसेंस पर तमे देखियो पिला एते पिला फिजिकल मैच्योर फुली हे जाई थाए आ फिजिकल मैच्योरेशन एते परिमाण हुए नाही धीरे धीरे तमे देखियो मध्ये तार मेंटल मैच्योरेशन फिजिकल मैच्योरेशन जो मैच्योरेशन गोटा दरकार निर्दिष्ट बयस से गुडा परिपूर्ण हे जाए एवं एटा गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नुही मैच्योरेशन मैच्योरेशन गोटे स्पेसिफिक एज हेले स्पेसिफिक स्टेज हेले बंद हे जिवो किंतु लर्निंग गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तेणु मैच्योरेशन गोटे कैरेक्टरिस्टिक ना देयर इज एज लिमिट there is age limit in maturation थर्ड रे कोन पिले तुमे कहलो लर्निंग रे सर मोटिवेशन रो आवश्यकता पड़ी थाए किंतु मैच्योरेशन पई परिपक्वता पई मोटिवेशन रो किछि आवश्यकता पड़ी न थाए तुमे जेते ट्रेनिंग करो प्रैक्टिस करो लर्निंग करो से मैच्योरेशन ऊपर प्रभाव पकेबो नाही तुमे देखो तुमे कहबो कि पिला गोटे फिजिकल मैच्योरेशन पई फिजिकल मैच्योरेशन पई पुबर्टी प्राप्त हो पिला केबे कि गोटे झियोटे 12 वर्ष हो पुटी 13 वर्ष हो सेतेबेले तार फिजिकल मैच्योरेशन होबो तुमे देखो गोटे 5 वर्ष पिला फिजिकल मैच्योरेशन करे पई मोटिवेट करि देखिया से हे जिवो हबो कि कदापि हबो नाही तेणु करी there is no role of motivation no role of motivation एटी अभिप्रेरणा कोनोसी रोल न थाए आ गोटे कोन बिले ना तुमे कहिलो लर्निंग टा होची गोटे कॉन्शियस प्रोसेस गोटे कंट्रोल प्रोसेस कि मैच्योरेशन होची कोन ना गोटे अनकंट्रोल्ड आ ऊपर हमर किछि कंट्रोल न थाए पिले एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस ठीक है पिले आउ जोटा तुमकर परीक्षा जोटा पचारिथिला एई जो तुमମାନଙ୍କର क्वेश्चन पचारछि कि मैच्योरेशन होची गोटे नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया ये होची गोटे नेचुरल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस ठीक है पिले कौन कौन हम कैरेक्टरिस्टिक्स मन रखली पांचटा सर मैच्योरेशन इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी देयर इज एज लिमिट इन मैच्योरेशन देयर इज नो रोल ऑफ मोटिवेशन प्रैक्टिस और लर्निंग मैच्योरेशन इज अनकंट्रोल्ड एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस मैच्योरेशन इज ए नेचुरल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस व्हिच इज स्वाभाविक प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 2 पिले आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट आथु हमको फॉल्स बा भूल स्टेटमेंट को फाइंड आउट करिवार अछि पिले लर्निंग गोटे गोल प्रोसेस हम जानि छै लक्ष्य प्रणोदित प्रक्रिया maturation require practice and training ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପିଲେ there is no role of practice there is no role of training there is no role of motivation in maturation or in the process of maturation maturation ପାଇଁ practice ର training ର କିମ୍ବା motivation ର आवश्यकता पड़ी न थाए ମୁଁ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ପିଲା କହିବି ତୁ practice कर training कर କି ଗୋଟେ physical mature होवा ପାଇଁ କି ତୁମେ ଦେଖ ଜିନ୍ ପିଆଜ କୁ ଦେଖ କେମିତି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କି ପିଲା ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଯାଇ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ରିଜନିଂ କରିପାରିବ କି ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ତୁମାନଙ୍କର ଆନାଲୋଜିକାଲ ରିଜନିଂ କରିପାରିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କରିପାରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ 4 ବର୍ଷର 5 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ କହିବି ତୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ରିଜନିଂ କର ତୁ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସଲ୍ୟୁସନ କର ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଏଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ତେଣୁକରି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲେ କଣ ହବ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଆସିନି ସେଇ ଏଜ ଆସି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଚୁରେସନ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟ୍ରେନିଂ କେବେ ମୋଟିଭେସନ କୁ ରିକ୍ୱାର କରେ ନାହିଁ किंबा मोटिवेशन को रिक्वायर करना है मन रखिथि स्टेटमेंट पिले फॉलो भाबरे तो एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट तुम मानकर कि देछि एटी कि मैच्योरेशन रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग मैच्योरेशन केबे हेले रिक्वायर करे नाही क्वेश्चन नंबर 3 पिले व्हाट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग बट नॉट फॉर मैच्योरेशन आदि कोटा लर्निंग बा शिक्षण पई दरकार किंतु मैच्योरेशन पई दरकार नहीं आंसर करो पिले शिक्षण पे गुड़ा दरकार प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोटिवेशन ये सब दरकार प्रैक्टिस दरकार अछि ट्रेनिंग दरकार अछि मोटिवेशन भी दरकार अछि तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर जोटा कि मैच्योरेशन रे किछ आवश्यकता पड़ी क्वेश्चन नंबर 4 प्ले अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट प्ले किए देथिले मते मेंशन करलो तो माने एटा किए देथिले तुमनकर लॉ ऑफ इफेक्ट ता लर्निंग इज फास्टर व्हेन द लर्नर इज रेडी repetition strengthen learning a response followed by satisfaction are more likely to be repeated learning occurs suddenly through insight answer kare play
ल ऑफ इफेक्ट को तुमମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ থিওরি କ୍ଲାସ ଦେଖିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋ ନାଁ କୁ ମନେ ରଖିବ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କଣ ନା ସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ନିୟମ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ନିୟମ ल ଅଫ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ ଫଲୋଡ ବାଇ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଛି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ରେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ତାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ସେ ପୁଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବ ତେଣୁକରି ल ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ ରେ ଯଦି ଫଳାଫଳଟା ଭଲ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ରିପିଟେଡଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରିବ ଯଦି ଫଳାଫଳଟା ଖରାପ ହଉଛି ବା ଭଲ ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହଟା ତାର କମି କମିକି ଯିବ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ସି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଫଲୋଡ ବାଇ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଆର୍ ମୋର ଲାଇକଲି ଟୁ ବି ରିପିଟେଡ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ହଉଛି ପିଲା ତାହେଲେ ସେ କାମକୁ ସେ ଆଉଥରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଏ ଲଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ ଯୋଉଟା ତୁମମାନେ ମେନସନ କରୁଛ ନା ସାର୍ ଏଟା ହେଲା ଇଏଲ ଥର୍ଣ୍ଡାଇଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ଅଛି ତିନିଟା ଲ ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ଭିତରୁ ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ଲ ଅଛି ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଲ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆକୁ ଓଡିଆରେ କହିଲେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଫଳାଫଳ ନୀତି ବା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ ଟାକୁ ଆଉ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଆଉ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ Question number 5 ପିଲେ which law states that connections are strengthened with practice and a weekend without it ଆଦରୁ କୋଉ ଲ ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କହୁଛି କୋଉ ଲ ଟା ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ତାହେଲେ କନେକ୍ସନ ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ ହବ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବା ସେଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ କନେକ୍ସନ ଅଫ ହ୍ୱାଟ କନେକ୍ସନ ବିଟୱିନ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ କାରଣ ଆମେ ଷ୍ଟିମୁଲସ ରେସ୍ପନ୍ସ ର କନେକ୍ସନ କଥା କହୁଛୁ ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି ତାହେଲେ ସେ ପାଠରେ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ କଣ ହବ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବିନି ତାହେଲେ ଦକ୍ଷତାଟା କଣ ହବ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ତୁମର କାହା ସହିତ ଜଡିତ ତାହେଲେ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଲ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଲ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆକୁ ଦି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲ ଅଫ ୟୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ ଅଫ ଡିସୟୁଜ ଲ ଅଫ ୟୁଜ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଲ ଅଫ ହେଲା ଡିସୟୁଜ ହେଲା ଅବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ କନେକ୍ସନ ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ ହବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମର ସଫଳ ହବ ଭଲ ହବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଟା ୱିକ୍ ହେଇକା ଯିବ ଆଉ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରପର ହବ ନାହିଁ ବା ଭଲ ହବ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ B is the correct answer law of exercise question number 6 ପିଲେ Thorndike's trial and error theory is primarily based on which concept Thorndikeର trial ଆଉ error learning theory କୋଉ concept କୁ ଆଧାର କରୁଛି ପିଲେ ଆଧରୁ ବା କୋଉ concept କୁ ଆଧାର କରି ତୁମମାନଙ୍କର ଗଢି ଉଠିଛି ନା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କନେକ୍ସନ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା ସେ ଷ୍ଟିମୁଲସ ରେସ୍ପନ୍ସ କନେକ୍ସନ ଯଦି ଷ୍ଟିମୁଲସ ରେସ୍ପନ୍ସ ର କନେକ୍ସନ କଥା କହୁଛେ ଯଦି ପିଲା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟିମୁଲସ ରେସ୍ପନ୍ସ ର କନେକ୍ସନ ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ ହବ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାରମ୍ବାର ବା ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର Question number 7 ପିଲେ which of the following best describes the core idea of a Thorndike's trial and error learning ଆଧରୁ କୋଉଟା ପିଲେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକର ଟ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିର କୋର ଆଇଡିଆ ବା ମୂଳ ଆଇଡିଆଟା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ ପଢେଇବେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ କଣ ଆଣିଲେଣି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକରୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେହେତୁ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ବା ରେଡିନେସ ଗୋଟେ ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତେଣୁକରି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ଟା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛି ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କିଛି ଆଣିଛି ଆଦ୍ରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକର ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ପିଲେ କୋର ଆଇଡିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅକର୍ସ ଥ୍ରୋ ସଡନ ଇନସାଇଟ୍ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଟା କୋଉଥିରେ ନା ଏଟା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଏଟା ନୁହେଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ
ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କହିଥିଲି ୟାକୁ ଲर्निंग ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଯେମିତି ସାଲାରୀ ଟା ଆମର ବଢି ବଢିକା ଯାଉଛି ମାସକୁ ମାସ ତୁମମାନେ ଟିଚର ହେଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ମାସକୁ ମାସ ବଢିବନି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢିବ ଠିକ ହେଲା ଯେମିତି ସାଲାରୀ ବଢି ବଢିକା ଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଆସୋସିଏସନ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଯାହା କହୁଛି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅପସନ बी तुमମାନଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ କୋର ଆଇडिया କାହାର ନା ଟ୍ରାଏଲ ଏଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ନିଂ থিওরি ର ଆଉ ଲର୍ନିଂ ଇଜ ପ୍ରାଇମରିଲି ड्रिवन बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन एटा कार ना सोशल लर्निंग थ्योरी आल्बर्ट बांदुरा मन रखिबो क्वेश्चन नंबर 8 पिले द लॉ ऑफ रेडिनेस एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ रेडिनेस कहार इंपोर्टेंस को पिले गुरुत्व आरोप करूची बा कहार इंपोर्टेंस को एम्फसाइज करूची law of readiness talks about the preparedness or motivation level of the learners कि पिला केते मोटिवेटेड अछि कार्य करिया पई पिला केते प्रिपेयर्ड अछि कार्य करिया पई तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले लॉ ऑफ रेडीनेस रे मु तमनकु कहितली गोटे दिटा कथा तमन मन तीनटा कथा कहितली तमन मन रखियो कि जदि पिला पाठ पढिया पई रेडी अछि सेही समय त कोइ पढौछे ताहले पाठ पढ़ाटा पिला पाई सैटिस्फाइंग हबो पिला को भलो हबो पाठ पढ़ाटा बेटर हबो पिला को भल लागियो पिला भल से पढिबो जदि पिला रेडी अछि आमे पढौ नाहु ताहले कोन हबो ताहले एटा अनोइंग हबो बेटर हबो नाही जदि पिला रेडी नाही किंतु आमे फोर्सफुली ताको पढौचु ताहले मध्य एटा अनोइंग हबो फ्रस्ट्रेटेड हबो ता पे बेटर हबो नाही तने करी जदि चाइल्ड रेडी अछि ताको पढौचे ताहले कोन हबो ता पे एटा सैटिस्फाइंग हबो ता पे एटा बेटर हबो आगे मौसी आगे आगे मौसी मैं क्लास में सारी के अल्प समय करूछी तो एटा हमर आंसर कोन हला पिले ना ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर गोटे पिलार तार मोटिवेशन तार प्रिपेयर्डनेस कोन करे गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे लॉ ऑफ रेडीनेस आ लॉ ऑफ रेडीनेस रे हमें लर्नर केते मोटिवेटेड केते प्रिपेयर्ड अछि से कथा हमें कहूचे ठीक है पिले तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 पिले अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडीनेस when a learner is ready to respond and is allowed to do so the result is जदि पिलाटा रेडी अछि if the learner is ready to do the act of doing is satisfying if ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା ବୁଝେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି if the learner is ready to do the act of doing is satisfying जदि पिला रेडी अछि कार्य करिया पई जदि से कार्यटा से करूछ त हम अलाउ करूछे सेटा कोन satisfying हो ता पई तो ऑप्शन बी रे देखो सेटा satisfaction and stronger connection जदि से रेडी अछि कार्यटा करूछ ताल ता पई एटा सुखदायक हो संतोषदायक हो तो एटा ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 प्ले law of readiness suggests that when a learner is ready to respond but is prevented from doing so the likely outcome is ଯେତେବେଳେ ଲର୍ନର ରେଡି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବାକୁ ଦଉନାହୁଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିକି ଆସୁଥିଲି ତିନିଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଏଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହବ ତା ପାଇଁ ଏଟା ଆନୋଇଂ ହବ ଏଟା ତା ପାଇଁ ବେଟର ହବ ନାହିଁ ତାର ଏଟା କନେକ୍ସନ କୁ ୱିକ୍ କରିଦବ ଠିକ ହେଲା ଯଦି ରେଡି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ବେଟର ହବ ଯଦି ରେଡି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆନୋଇଂ ହବ ଯଦି ରେଡି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛେ ତାହେଲେ ବି ଆନୋଇଂ ହବ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତ ଏଇ ତିନିଟା ସିଚୁଏସନ ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ତ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पिले हाउ डज द लॉ ऑफ रेडीनेस रिलेट टू द कांसेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लर्निंग लॉ ऑफ रेडीनेस टा केभली भाबरे तमानकर अंत अभिप्रेरणा बा इंट्रिंसिक मोटिवेशन सहित एसोसिएटेड बा रिलेटेड आमे इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे कोन कहउतले पिले आमे इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे भी कहउतले कि पिला इंटरनली केते एक्साइटेड अछि क्यूरियस अछि गोटे कार्य करिया पई whether the learner is enjoying the learning or activities or not कि पिला गोटे कार्यटा करला बेले केते एन्जॉय करूची ता पई केते प्लेजर ओरिएंटेड से कार्यटा नहीं
तो सेही कथा तुमनकर लॉ ऑफ रेडिनेस रे हमें भी कहिबा आंसर करो प्ले ऑप्शन डी प्ले देखो ना इट हाइलाइट्स दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन कंट्रीब्यूट टू स्टेट ऑफ रेडीनेस टू लर्न पिला इंट्रिंसिकल मोटिवेटेड जदि थिबो भी एटा रेडीनेस को निश्चित भाबरे कंट्रीब्यूट करिवो तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्ले जिबे क्वेश्चन नंबर 12 which of the following motivation theories पिले एबे आसला मोटिवेशन रु तुमनकर क्वेश्चन हमें भी जानि छे मोटिवेशन भी गोटे फैक्टर पिला मनकर लर्निंग रेडीनेस को आधार करी बा लर्निंग कंडीशन को आधार करी लर्निंग कंडीशन जतला हम देखले बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन भी गोटे कंडीशन तुम मानकर तो मोटिवेशन रो पिले भी क्वेश्चन आसुची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कांसेप्ट तो सेगुडा भी हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर दबा which of the following motivation theories emphasizes a hierarchy of needs suggesting that lower level needs must be satisfied before higher level needs become motivators आमे तो चाहूं छे कि जतले लोअर लेवल जोड़ा सब नीड्स रहिला आमे देखिया बॉटम जे देखिबा टॉप बा देखिया हायर नीड्स बॉटम रे रहिला कोन ना लोअर नीड्स बॉटम रे लोअर नीड्स और टॉप रे हमें हायर नीड्स रो कथा कहूची जेतोले हमें नीड ऑफ हेराकी कथा कहूचे सेतोले हमें को थ्योरी कहूचे मोटिवेशन रो पिले ना मास्लोंकर हेराकी ऑफ नीड्स जोथरे से कहउचंती नीड्स आर अरेंज्ड इन ए हेराकिकल ऑर्डर गोटे हेराकिकल ऑर्डर रे नीड्स गुडा को अरेंज्ड हिची एवं जो नीड रे तुम देखिबो लोअर नीड्स गुडा को बॉटम रे रहिची एवं जोडा को हायर नीड्स गुडा को टॉप रे रहिची जदि हमें सेमानकर बा तांकर हेराकी ऑफ नीड्स थ्योरी को देखिबा पांचटा से नीड कथा से गुरुत्वारोप करिसेंती कोन पिले ना बॉटम जदि हम जिया बॉटम जिया प्रथम पिले कोन तुम मानकर जदि बॉटम रु पिले जिवा प्रथम हम देखिबा कोन ना फिजियोलॉजिकल नीड्स तापर हम देखिबा सेफ्टी नीड्स तापर देखिबा लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स देन हम देखिबा एस्टीम नीड्स देन हम जिबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पिले प्रथम हला फिजियोलॉजिकल नीड्स देन सेफ्टी नीड्स देन लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स देन सेल्फ एस्टीम बाय एस्टीम नीड्स देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स से पिले हम कोन कहूचे ना फिजियोलॉजिकल नीड्स आर टॉक्स अबाउट पूरा बेसिक जोडा को नीड्स हम रहिला बा जोडा को सर्वाइवल नीड्स जोडा रहिला जेंति हम कहया फूड एयर वाटर शेल्टर एगुडा सब कोन ना एगुडा सब फिजियोलॉजिकल नीड्स हमर सर्वाइवल नीड्स सेफ्टी हमें सिक्योरिटी कथा कहूचे प्रोटेक्शन रो कथा कहूचे हेल्थ रो कथा कहूचे ठीक है देन आसला लव एंड बिलोंगिंगनेस रे कोन कहूची ना हमें इंटिमेशन कथा कहूचे बा इंटिमेसी रो कथा कहूचे हमें जेतोबेले फ्रेंडशिप रो कथा कहूचे हमें फैमिली रो कथा कहूचे ठीक है जेतोबेले इंटिमेसी रो कथा कहूचे लव रो कथा कहूचे फ्रेंडशिप रो कथा कहूचे फैमिली रो कथा कहूचे एई सब नीड्स गुडा हमर दरकार केतोबेले ना लव और बिलोंगिंगनेस रो नीड्स रो कथा कहूचे जेतोबेले एस्टीम नीड्स आसिला एस्टीम नीड्स रे हम कोन कहूचे पिले ना एस्टीम नीड्स से रिस्पेक्ट रो कथा कहूचे रिकॉग्निशन रो कथा कहूचे अचीवमेंट रो कथा कहूचे ठीक है देन आसला तुम मानकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोन कहया पिले ना रियलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियलिटीज और हमें जेतोले इंडिविजुअल ग्रोथ कथा कहबा ठीक है पिले एटा तुम माने जान रखियो पिले टिके हैंड राइटिंग खराब होउची तुम माने एडजस्ट करनो मोर विश्वास धीरे धीरे प्रैक्टिस कले एथरे मोर निश्चित भाବରେ ଭଲ ହେଇଯିବ କାରଣ ଫାस्ट टाइम एगुडा यूज होउची तो
ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ହଉ ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମମାନେ ଜାଣି ରଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ରେ ସାର୍ କଣ ଆମର ଆସୁଛି ନା ଫୁଡ, ଏୟାର, ୱାଟର, ସେଲ୍ଟର ଏଗୁଡାକ ଆସିବ। ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ହେଲ୍ଥ ଏଗୁଡା କଥା କହୁଛେ। ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଣ୍ଟିମେସି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆର କଥା କହୁଛେ। ଆଉ ଏସ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ର କଥା କହୁଛେ, ରେକଗ୍ନିସନ ର କଥା କହୁଛେ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ର କଥା କହୁଛେ। ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରିୟଲାଇଜେସନ ଅଫ ଫୁଲ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଜ, ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର ପ୍ଲେ କଣ ନା ଅପସନ ବି ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଗୁଡା ମନେ ରଖ, ହଜବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ଲେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି, ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ଗୁଡା ଦେଇଛି ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖ। ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବାଇ ହଜବର୍ଗ, ନିଡ୍ ଥିଓରି ବାଇ ମ୍ୟାକଲାଣ୍ଡ, ଆଉ ବ୍ରୁମ୍ସଙ୍କର ହେଲା କଣ ନା ଏକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସି ଥିଓରି। क्वेश्चन नंबर 13 पिले एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले अकॉर्डिंग टू हजबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मोटिवेटर फैक्टर दैट कैन लीड जॉब सैटिस्फैक्शन। पिले आधुरु प्रथम जाने पड़िबो हजबर्गर टू फैक्टर थ्योरी कोन। टू फैक्टर थ्योरी दीटा फैक्टर अछि, एथि देला मोटिवेशन फैक्टर बा मोटिवेटर फैक्टर ता। सो से कहूची हजबर्गर टू फैक्टर थ्योरी रे गुटी फैक्टर हला मोटिवेटर फैक्टर, एवं आदरु कोउटा गोटे मोटिवेटर फैक्टर जोटा कि जॉब सैटिस्फैक्शन पई कारण बनिछि, बा हम कहे जॉब सैटिस्फैक्शन रो गोटे कारण बा रीजन कोउटा जोटा कि मोटिवेटर फैक्टर भीतर तुमनकर आसीबो। आंसर करे बिले सर ऑप्शन सी होच करेक्ट आंसर, रिकॉग्निशन। बिले जानो हजबर्गर टू फैक्टर थ्योरी को हमें कहू, इट इज आल्सो नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। याकु मध्य मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी बिले कहा जाए। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी काहे कहा जाए, दीटा फैक्टर जोटा कि लीड करे जॉब रे सैटिस्फैक्शन को। मन रखिता दीटा कथा हमें कहिबा, गोटे हला तुमनकर गोटे गोटे करे कहि दोची पिले हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर काम कोन पिले ना ये कोन को जेम हमें हाइजीन कहूचे रोग न होवा पई हमें कोन करू पिले हाइजीन मेंटेन करू, भल से खाइबा, हाथ धोइबा सेमती। तो जॉब रे जेमिति इंडिविजुअल डिसैटिस्फाइड न होबो, हाइजीन फैक्टर सेति पई प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। सैटिस्फैक्शन होबा कथा कि डिसैटिस्फैक्शन न होबो। सो हाइजीन फैक्टर मुख्य काम होला ना इट प्रिवेंट्स जॉब डिसैटिस्फैक्शन। मन रखिबो ये आर काम होला कोन ना प्रिवेंट जॉब डिसैटिस्फैक्शन। कौन कौन सब हाइजीन फैक्टर भीतर प्ले आसीबो, तुमनकर पॉलिसीज आसीजिबो, ठीक है, तुमनकर वर्किंग कंडीशंस आसीजिबो, तुमनकर सैलरी आसीजिबो, ठीक है, रिलेशन आसीजिबो, तुमनकर सेफ्टी आसीजिबो हैला, पॉलिसीज, कंडीशंस, रिलेशन, सेफ्टी, सैलरी ये सब तुमनकर हाइजीन फैक्टर। आ हाइजीन फैक्टर केबे हेले डिसैटिस्फैक्शन कराई दबो नै, कारण ये प्रिवेंट करे जॉब रे केमिति डिसैटिस्फैक्शन न होबो। तार आउ गोटे आसले फैक्टर कोन ना मोटिवेटर फैक्टर। सो मोटिवेटर फैक्टर रे हमें कहूचे आर काम ना इट लीड्स जॉब सैटिस्फैक्शन, इट लीड्स टू जॉब सैटिस्फैक्शन। आर काम होला जॉब रे केमिति बा सैटिस्फाइड हो, सेति ये मोटिवेशन दिए जॉब सैटिस्फैक्शन। तो आ भीतर फैक्टर्स कोन आसीबो, एडी सर आपण कहले गोटे होतला रिकॉग्निशन, ठीक है, हमें कहि परिबा अचीवमेंट, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, एगुडा सब किछि ना एगुडा सब मोटिवेटर फैक्टर भीतर आसी जीवो। रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ठीक है पिले। तमे हर्जबर्गर टू फैक्टर थ्योरी दीटा फैक्टर मन रखिबो, गोटे हला हाइजीन फैक्टर आ गोटे हला मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट्स जॉब डिसैटिस्फैक्शन, मोटिवेटर फैक्टर लीड्स जॉब सैटिस्फैक्शन। हाइजीन फैक्टर भितरे कोन कोन आसीबो, पॉलिसीज आसीबो, कंडीशंस आसीजिबो, वर्किंग कंडीशन हमें कहूचे, रिलेशन, सेफ्टी, सैलरी ये सब आसीजिबो। जेमति तुम मानकर मोटिवेटर फैक्टर रे कोन कोन आसीजिबो, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट एगुडा सब तुमनको आसीजिबो, ठीक है। तो एटी हमरो आंसर बिले कोन हला ना रिकॉग्निशन हला गोटे प्रकार मोटिवेटर फैक्टर। एटी जो सैलरी देछि, वर्किंग कंडीशन देछि, कंपनी रो पॉलिसी देछि, ये सब गोटे हाइजीन फैक्टर। मैकलैंड रो चलला, मैकलैंड नीड थ्योरी आइडेंटिफाइज थ्री बेसिक नीड्स
that motivate individuals which of the following is not one of these needs. मैकक्लेलान करो जो तुम मानकर नीड थ्योरी रहिला मन रखिबो नीड थ्योरी मोटिवेशन रो तीनटा बेसिक नीड्स को से कहउछनी कोन नीड फॉर अचीवमेंट नीड फॉर पावर नीड फॉर एफिलिएशन नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एटा तुम मानकर कहारो ना मास्लोंकर हायरार्की ऑफ नीड्स रे तो एडी हमर आंसर कोन होची ऑप्शन डी एटा ताकर बेसिक नीड भीतर आसु नाही नीड फॉर अचीवमेंट कोन नीड फॉर पावर कोन नीड फॉर एफिलिएशन कोन एगुडा को मु एबे एक्सप्लेन करबी नाही कारण आकु नै कि तुम मानकर आगु क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन तुम माने अटेम्प्ट करि सारा तापर एगुडा को तुम मानको एक्सप्लेन करबी Question number 15 play. Vroom's expectancy theory proposes that motivation is a product of an individual's. Vroom's expectancy theory कौन propose करूची पिले कि motivation गोटे कहार product? Motivation is driven by what? Motivation is driven by and এটা ଗୋଟେ belief system कि हमें Vroom's expectancy theory कहूचे कि effort will definitely leads to good performance. जोटा हम एक्सपेक्टेशन करूचे एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटालिटी रे हमें कोन करूचे ना गुड परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली लीड टू गुड रिजल्ट र कथा कहूचे एंड वैल्यूइंग गुड रिजल्ट र कथा कहूचे बैलेंस रे सो ए तीनटा कथा हमें चिंता करूचे जोटा कि पिल्लान को मोटिवेट करि थाए एज पर द व्यू ऑफ ब्रूम्स तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड बैलेंस Question number 16 play. Which of the following theories focuses on expectancy, instrumentality and valence? एबे डिस्कशन करके आसले कहार प्ले ना एटा तुम मानकर Vroom's कर expectancy theory. Question number 17 play. Hodgeberg's two factor theory classifies factors into केतेटा कैटेगरी करथिला दीटा फैक्टर कोन कोन कहि के आसिलिया Hodgeberg two factor theory is also known as motivation and hygiene theory से दृष्टिकोण चिंता करो दीटा फैक्टर कोन कोन गोटला हाइजीन फैक्टर आ गोटला मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर व्हाट इज हाइजीन फैक्टर सर हाइजीन फैक्टर आर दोस फैक्टर व्हिच प्रिवेंट job dissatisfaction and motivational factors are those factors which leads to job satisfaction. Question number 18 play. Which motivation theory emphasizes internal attributions like autonomy, competency and a connection जोटा relatedness हमें कहूचे these psychological needs will definitely leads to motivation कौन कौन पिले किए कहउछन एटा कि जो इंटरनल एट्रिब्यूशंस रहिला बा हमें कहूचे जो साइकोलॉजिकल नीड्स गुडा रहिला ऑटोनॉमी कॉम्पिटेंसी कनेक्शन बा रिलेटेडनेस एटा डेफिनेटली मोटिवेट करिवो तो एटा किए कहउछ पिले ना एटा सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी बा जोडो हमें कहूचे कोन तुम मानकर OSSTET थ्योरी सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी पिले के देथिले एटा तुम मानकर डीसी एंड रायन ठीक है पिले तो मन मन रखिबो क्वेश्चन नंबर 19 पिले इन Hodgeberg's two factor theory which of the following would be classified as hygiene factor पिले Hodgeberg रो two factor theory रे आथु कोटा को हमें hygiene factor भितर क्लासिफाई करिया म तुमन केबे कहि के आसिली hygiene factor भितर कोन कोन रहिबो ऑप्शन डी पिले देखो सैलरी एंड बेनिफिट्स नहीं कंडीशंस कथा कहली सैलरी एंड बेनिफिट्स कथा कहली रिलेशन कथा कहली तुम मानको सेफ्टी कथा कहली ए सब का भितर आछो तुम मानकर ना तुम मानकर हाइजीन फैक्टर भितर आछिबो किंतु एडवांसमेंट अकम्प्लिशमेंट आउ द नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ ए सब आछो तुम मानकर मोटिवेशन फैक्टर भितर क्वेश्चन नंबर 20 तुम मानकर अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी which of the following characteristics would make a goal most effective in motivating performance आदर पिले कोटा गोटे गोल सेटिंग थ्योरी अनुसार गोटे गोल को अधिक इफेक्टिव बनै परिबो आदर कोड गोटे एमिति कैरेक्टरिस्टिक्स यदि गोलटा स्पेसिफिक हेतिबो यदि गोलटा हाईली चैलेंजिंग होइतिबो यदि गोलटा एक्सेप्टेबल हेतिबो यदि गोलटा हमें कहूचे
चैलेंजिंग तापे हेतिबो स्पेसिफिक हेतिबो एक्सेप्टेबल हेतिबो पिला कमिटेड थिबो तले से भलिया गोलटा कोन निश्चित भाबरे इफेक्टिव गोल हे परिबो पिलार मोटिवेशन निश्चित भाबरे एनहांस हे परिबो तो ऑप्शन सी तुमनकर पिलाडी करेक्ट आंसर पिला हमें तुमनकर 48 नंबर मॉक टेस्ट को कवर अप करले एतरे तुमने केते स्कोर कलो 20 रु निश्चित भाबरे मेंशन करिवो ता सहित जदि किछि तुमनकर डाउट मध्ये रहला तबे निश्चित भाबरे से डाउट मेंशन करि परिबो नेक्स्ट बा मॉक टेस्ट नंबर 49 पिले एथरे तुमनकर हम आउ कोडा क्वेश्चन डिस्कशन करबा जदि भी काहर को डाउट रहला डाउट मेंशन करे सहित ए कोडा क्वेश्चन तो माने केते स्कोर करूछो से स्कोर टा को तुम मध्ये मेंशन करिवो चलो बोले जिबा मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 49 को कवर अप करबा क्वेश्चन नंबर 1 पिले द ERG theory was developed by पिले ERG theory के डेवलप करथिले आल्डरफर पिले क्लेटन आल्डरफर जो ERG थ्योरी रहला ई रे पिले हमें कहूचे एक्जिस्टेंस नीड आर हमें कहूचे रिलेटेडनेस नीड से भलिया तुम मानकर जी रे हमें कहूचे ग्रोथ नीड्स ठीक है पिले तुम पे जो तुम मास्लोंगर हेराइकी ऑफ नीड्स पढ़ेइतिली से मास्लोंगर हेराइकी ऑफ नीड्स को जस्ट तुम्हें कॉपी करके मन रखिदेव केमती मास्लोंगर हेराइकी ऑफ नीड्स जो पांचटा तुमको नीड्स कहितली एक्जिस्टेंस नीड्स रे हमें कहूचे मास्लोंगर तुमनकर जो प्रथम रहला फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस सेफ्टी नीड्स ये दीटा जो मिश्रण हो आम कहवा कौन ना एक्जिस्टेंस नीड्स से भाई रिलेटेडनेस नीड्स आम कौन कहवा ना तुमनकर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड प्लस एस्टीम नीड्स ए दीटा जो मिश्रण हो कहवा रिलेटेडनेस नीड्स से भाई ग्रोथ नीड्स को आम कहवा कौन ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ठीक है पिले तो मन रखियो एटा तुमनकर आल्डरफर ERG थ्योरी बा एक्जिस्टेंस रिलेटेडनेस आउ ग्रोथ नीड्स क्वेश्चन नंबर 2 पिले द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पिले ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहार ड्राइव रिडक्शन थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन ऑलवेज ट्राई टू सैटिस्फाई फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हम सब ट्राई करू ड्राइव को रिड्यूस करिया पई भोक लागुची शोष लागुची नहीं तो एटा के देखले तुम मान ए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ना एटा हमर हॉल पिले ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बा सिस्टमैटिक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी तंकर क्वेश्चन नंबर 3 हु प्रपोज द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गोल सेटिंग थ्योरी पिले कहार जदि आमे एक्सेप्टेबल specific and challenging goal set करूचे that will definitely leads to higher motivation यदि गोल टा स्पेसिफिक थिबो चैलेंजिंग थिबो एक्सेप्टेबल थिबो देन सेटा निश्चित भाବରେ मोटिवेट करिवो एटा कहार पिले ना एटा लॉक आउ लाथाम कर तो ऑप्शन ए तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पिले the desire to excel and succeed in challenging task the desire to demonstrate mastery the desire to show your competency एभଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ नीड ର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କଥା ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋ ମୋଟିଭେସନ କଥା କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ अचीवमेंट मोटिवेशन କଥା କହୁଛେ ପିଲେ अचीवमेंट मोटिवेशन रे हमर डिजायर थाए कि ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟେ चैलेंजिंग टास्क को केमति सक्सीड करिवा केमति ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟେ कॉम्पिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट करिवा ଗୋଟେ मास्टरी को डेमोन्स्ट्रेट करिवा नै एटा तुमरो मैकलैंड कर नीड थ्योरी को तुमने मन रखिबो क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज मोटिवेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मोटिवेशन हम केमति भलो हर डिस्क्राइब करि परिबा ना मोटिवेशन होची गोटे internal process which directs behavior which regulate behavior right which works as a driving force which is also energize behavior
नहीं ये एनर्जाइज करे, रेगुलेट करे, डायरेक्ट करे, नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is an example of intrinsic motivation? आदर कोटा गोटे internal motivation by intrinsic motivation रो बेले उदाहरण। प्राइज आसिला, अवॉइडिंग पनिशमेंट आसिला, प्रेज कार आसिला, ये सब एक्सटर्नल ओरिएंटेड। जेतले हम क्यूरियोसिटी कथा कहूचे, ओन इंटरेस्ट कथा कहूचे, प्लेजर ओरिएंटेड कथा कहूचे, जॉय ओरिएंटेड कथा कहूचे, मते भलो लागे बोली से कार्यटा मु करूची, दैट मींस we are talking about intrinsic motivation or internal motivation. So option D is the correct answer. Question number 8 पिले, which of the following is not a characteristics of motivation? आदर कोटा गोटे अभिप्रेरणार पिले वैशिष्ट्य characteristics नुहे। motivation is goal directed, motivation गोटे static process पिले, motivation गोटे dynamic process मन रखिबो, गोटे dynamic process, ठीक है ला, एटा गोटे static process नुहे, it varies in intensity, it can be intrinsic as well as extrinsic. तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पिले, which of the following statements is it true about motivation? आदर कोटा पिले मोटिवेशन को आधार करी ट्रू स्टेटमेंट पिले आंसर दियो। मोटिवेशन सक्सेस पे गारंटी देव पिले, हैं? मोटिवेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल ड्रिवन, ऑलवेज एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बिहेवियर। ये बिहेवियर पछर थिबा गोटे ड्राइविंग फोर्स which regulate, which direct, which energize behavior, नहीं? तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। मोटिवेशन इज unrelated to learning, एटा देछि मोटिवेशन इज related to learning because motivation works as a important condition for learning. Question number 10 पिले, which theory suggests that individuals are motivated to reduce the discrepancy between or the difference between their current state and a desired future state? तुमनकर पिले लॉक और लाथम जोड़ा तुमनकर देथिले जो थियोरीटा गोल सेटिंग थियोरी, आमे कहूचे जदी गोलटा चैलेंजिंग होची, स्पेसिफिक होची, कमिटेड होची, ताल सेटा निश्चित भाବରେ मोटिवेट करिवो और से गोलटा गोटे ब्रिज भलिया का मीन्स ऑफ ब्रिजिंग डिफरेंशिएशन और गैप बिटवीन करंट स्टेट एंड ए डिजायर फ्यूचर स्टेट। तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। गोल सेटिंग थियोरी आमे कहूचे क्रिएटिंग डिस्क्रिपेंसी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 11 पिले, द कांसेप्ट ऑफ विकारियस रीइंफोर्समेंट पिले, विकारियस रीइंफोर्समेंट र कथा तळे कहूचे where individuals are motivated by observing others being rewarded is a key accomplishment of which theory? विकारियस रीइंफोर्समेंट तो मानको भी कहितली बिले, तुम देखुच तुम भाई क्रिकेट खेलुची, क्रिकेट खेलला बेले तुम भाई जतो बेले गोटे चारि मार देला कि छक्का मार देले, तुम बापा ताकू वेरी गुड एक्सीलेंट ताकू टिके कोळेई नउचंदी, ताकू टिके मोटिवेट करूचंदी, तो सेटा तुम ऑब्जर्व करलो विकारियस रीइंफोर्समेंट, सेटा तुमन कोन कला मोटिवेट कला कि तमे माने मध्य से भली भाबरे क्रिकेट खेलले तमन को रिवार्ड मिलिबो। तो एटा कोउथरे तुमनकर, एटा तुमनकर सोशल लर्निंग थ्योरी अनपका अल्बर्ट बांदुरांकर। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे, a student who studies diligently because they enjoy the subject matter and find it interesting is primarily driven by, यदि सब्जेक्ट ता पे यदि से गोटे कार्य करू सेटा पे इंटरेस्टिंग से एन्जॉय करूची, मत माने कहथि प्लेजर ओरिएंटेड हेले, एन्जॉयबल हेले, इंटरेस्टिंग हेले, मते भलो लागु से कार्य हम करूची, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन बी तुमनकर प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 प्ले, मोटिवेशन that is driven by a desire to connect with others and gain their approval is known as, आमे जळे कहूचे अन्य मानक सहित आमे कनेक्ट करिवा निजकू, अन्य मानकर अप्रूवल आमे पाइबा, लव रो कथा कहूचे, बिलोंगिंगनेस रो कथा कहूचे, सेतोळे आमे कोन काहा कथा कहूचे, वी आर टॉकिंग अबाउट एफिलिएशन मोटिवेशन। ठीक है बिले, एटा तुमनकर मैकलैंड कर नीड थ्योरी को तुमने मन पकेबा जानिबो। ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पिले, व्हिच मेथड एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग? तो सर कोन मेथड आसिलानी, मेथड भी गोटे कंडीशन ऑफ लर्निंग पिले कि लर्निंग पई ये गोटे इंपोर्टेंट कंडीशन भले काम करथाय
टीचिंग मेथड गुड़ा रहला टास्क एंड मोटिवेशन तुमको सिलेबस रे भी अछि तो व्हिच मेथड एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग प्ले लर्निंग बाय डूइंग हैंड्स ऑन लर्निंग को किए प्रमोट करथा है प्ले कि प्ले ना हमरो प्रोजेक्ट मेथड ताको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहि परिबा हैंड्स ऑन लर्निंग मेथड भी कहि परिबा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड हमें कहि परिबा पर्पसफुल एक्ट बोलिया को मैं कहूचे ठीक है प्ले क्वेश्चन नंबर 15 प्ले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच साइकोलॉजिस्ट ए जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तमे देखुचो एटा कहार गोटे अवदान बा को थ्योरी रो गोटे प्ले अवदान तुम मानकर पीएफ स्किनर तुम मानकर प्ले मन थिबो कोन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी जो थ्रे से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कथा कहउचंदी प्ले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन गोटे तुम मानकर एटा मन रखियो भल से प्ले ताला गोटे इंडिविजुअलाइज्ड एटा गोटे इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग अप्रोच गोटे जो थ्रे आमे कहूचे गोटे लेसन को कोन करिया पिले ना लेसन को गोटे आमे फ्रेम रे डिवाइड कर दबा फ्रेम बा चंक्स बा स्मॉल यूनिट्स रे डिवाइड कर दबा ठीक है पिले पिला को कहबा से छोट छोट यूनिट रे छोट छोट पार्ट रे ताको डिवाइड कर दबा प्रत्येक पार्ट को पिला से कार्य गुडी करबो ताको आमे इमीडिएट फीडबैक दबा इमीडिएट फीडबैक दबा जदि से भलो भाबरे से स्टेप को करि परला ताल ताको आमे रीइंफोर्समेंट दबा ठीक है पिले एक केतरा दिन मन रखियो कि ये होची इंडिविजुअलाइज लर्निंग जन जन व्यक्ति याको आमे स्पेस दबा ता स्पीड अनुसार से तार लेवल अनुसार शिक्षण को से तार गति आगु को नै परिबो आमे छोट छोट पार्ट छोट छोट चंक्स बा फ्रेम्स रे पाठ को डिवाइड कर दबा एवं प्रत्येक चंक्स कंप्लीट हबो तो ताको आमे इमीडिएट फीडबैक दबा एवं जदि से सक्सेसफुली करूची ताल ताको आमे रीइंफोर्समेंट बा रिवार्ड मथ्य दबा तो एडी ऑप्शन बी बीएफ स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग रो एटा गोटे अवदान हम कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 16 प्ले इन द इंडक्टिव मेथड द टीचर मूव्स फ्रॉम इंडक्टिव मेथड तमन को आगरु कहिछि बहुत थर भी बुझैछि शॉर्टकट रे मन रखिबो इंडियन पॉलिटी हला आईपी इंडक्टिव मेथड आईपी फॉर पर्टिकुलर सो इंडक्टिव मेथड को जाए ना पर्टिकुलर टू जनरल आड़ को जाए ठीक है पर्टिकुलर टू जनरल बा जोड़ कमे कहि परिबा जे पर्टिकुलर कहउछ माने स्पेसिफिक कथा कहउछे ताले आटे हमें एग्जांपल्स रो कथा कहिबा ठीक है ना एग्जांपल्स रू कोड को जीवो ना सर फार्मूला आड़ को जीवो बा रूल आड़ को जीवो नहीं हम छोट छोट एग्जांपल्स रू थ्योरी जनरेशन आड़ को जीबा एग्जांपल्स रू थ्योरी आड़ को जीबा एबडा हला तो मानकर इंडक्टिव मेथड र कथा हमें कहउछे तो एटा तुमन देखो थ्योरी टू फार्मूला एटा कोथरे एटा डिडक्टिव मेथड रे आगो थ्योरी को वेरिफिकेशन कथा हमें कहबा इंडक्टिव मेथड सब बळे कहे थ्योरी रो डेवलपमेंट कथा कहे बा जेनरेशन बा डेवलपमेंट रो कथा कहे ठीक है ना तो एटी तुमन देखो एग्जांपल टू रूल बा एग्जांपल टू फार्मूला होची कार ना इंडक्टिव मेथड रो क्वेश्चन नंबर 17 प्ले Which theory is based on the principle of a fairness in motivation? Fairness जदि थिबो वर्क फील्ड रे ताहाले निश्चित भाबरे इंडिविजुअलिटी मोटिवेटेड हबो जदि समस्त को इक्विटेबल ट्रीटमेंट करा जाउथिबो इक्विटेबल ट्रीटमेंट करा जाउथिबो बा इक्वली समस्त को ट्रीट करा जाउथिबो ताहाले निश्चित भाबरे गोटे इंडिविजुअल मोटिवेटेड हबो तार काम पाए तो एटा कोथरे कहउचंदी ना इक्विटी थ्योरी रे तो मानकर कहआ जाउची आडाम कर इक्विटी थ्योरी पिले ठीक है ना तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 पिले फियर ऑफ फेल्युअर को नहीं जतले हमें फियर करूचे तो ये जोटे एक्सटर्नल फैक्टर तो एटा को मोटिवेशन भीतर आसीबो ना सर ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भीतर आसीबो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 पिले मोटिवेशन इज ए डायनामिक बिकॉज मोटिवेशन स्टैटिक नुह इट इज डायनामिक बिकॉज सिचुएशन अनुसार गोल अनुसार निश्चित भाव मोटिवेशन परिवर्तन देखा पाई इट चेंजेस
according to situation, according to goals. So far the answer is option C. Question number 20 play. The idea that a behavior is driven by unconscious desires is central to which theory play? बिहेवियर क्या द्वारा परिचालित होता है ना आम जो अनकनसीयस डिजायर्स अच्छी थॉट्स अच्छी तार द्वारा तो जो आम माइंड को तीन टा लेवल कथा कहूचे आम कनसीयस सबकनसीयस अनकनसीयस कथा कहूचे ईगो सुपर ईगो कथा कहूचे ए कथा गुड़ा कौन आम पढ़ी पे फ्रॉइड पढ़ी ना सिग्मंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर सरला पिले आमे तुमମାନଙ୍କର मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 49 को आमे एबे कवर अप करले जदि आइथरे तुमମାନଙ୍କର कोनोसी डाउट थिबो जदि कोनोसी प्रॉब्लम थिबो निश्चित भाବରେ तमाने मेंशन करिवो ता सहित तमाने 20 रु केते एथरे स्कोर कलो सेटा मध्ये मेंशन करिवो नेक्स्ट प्लीज बा मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 50 जोथरे आमे तुमମାନଙ୍କର आउ कोडीटा क्वेश्चन को डिस्कशन करिवा तार एक्सटेंशन करिवा जदि भी एई सीरीज चलथे भितरे काहर कोडी डाउट रहला तमाने ड्यूरिंग लाइव बा ड्यूरिंग प्रीमियर समय पछारी परिबो ता सहित एई मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 50 रे तमाने केते स्कोर करछ 20 रु सेटा निश्चित भाବରେ मेंशन करिवो चलो प्ले आमे आगो जिबा क्वेश्चन नंबर 1 प्ले प्ले एटा तुमମାନଙ୍କର बेसिक कंडीशन फॉर लर्निंग आमे कहूचे जिथे तुमମାନଙ୍କର अछि रेडिनेस अछि मोटिवेशन अछि मेथड अछि मैचुरेशन अछि टास्क अछि ठीक है तो कंडीशन ऑफ लर्निंग कहले हमें कोन बुझुचे बेसिक कंडीशन कोन कोन रेडिनेस रो कोन थ्योरीज अछि सो सब एरियास मु तुमनकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई दोची जेबा क्वेश्चन 1 को बोले क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट रेडिनेस बाय जेतले आमे कहूचे गोटे पॉजिटिव गोटे सपोर्टिव लर्निंग आमे एनवायरनमेंट क्रिएट करिवा सेटा केभली भाबरे पिलांकर रेडिनेस को प्रभावित करूची बिले ना एटा पिलांक भितर निश्चित भाबरे क्यूरियोसिटी को एनकरेज करिवो एक्सप्लोरेशन पय सेमान को सपोर्ट करिवो तो ऑप्शन डी तुमानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पिले providing opportunity for students to explore a topic through hands-on activities through learning by doing आमे कहूचे can be beneficial because hands-on activities केमिति beneficial हो पिले बा काहे की beneficial हो because it caters different learning style जेतोले आमे कहूचे गोटे पिला visually learn करे पसंद करूची गोटे पिला सुनी के learn करे पसंद करूची जेतोले आमे hands on activities कहूचे सेतोले हमर सब आमे कहि परिबा डायमेंशन गुडा को इंक्लूजन होची हैंड आई तुमनकर कोऑर्डिनेशन कथा कहिबा तुमनकर हियरिंग कथा कहिबा तो सब प्रकार रो जो लर्निंग रहला विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक सब प्रकार लर्निंग ता एथि पॉसिबल निश्चित भाबरे हे परिबो तने करी इट कैटर्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एज वेल एज रेडीनेस लेवल्स ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर Question number 3 play. Which of these strategies can help teachers to assess students' learning readiness? आदरू को strategy टा पिला मानकर learning readiness को assess करिया पई टीचर मान को helpful हो पिले आंसर कर पिले आमे करिया brainstorming session करि परिबा जहा थ्रू पिला मानकर प्रायर नॉलेज केते अछि ताको फाइंड आउट करि परिबा ताकर इंटरेस्ट को मध्ये फाइंड आउट करिबा तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक टा पिले किए देथिले ऑसबॉर्न कर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक नहीं ये गोटे क्रिएटिविटी को एनहांस करूथिबा टेक्निक मन रखतियो पिले क्रिएटिविटी को एनहांस करूथिबा गोटे टेक्निक क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following statement best describes learning readiness आथ्रुस गोटे स्टेटमेंट जोटा कि लर्निंग रेडीनेस बा शिक्षण रे प्रस्तुति को भलो भाबरे दर्शाउची कोटा बिले से केते मेमोराइज करि करूची स्टूडेंट पोजीशन ऑफ ऑल नेसेसरी प्रायर नॉलेज केते प्रायर नॉलेज पोजेस करूची जेतले हम रेडीनेस रो कथा कहूची तार मोटिवेशन रो कथा कहूचे ता प्रिपेयर्डनेस रो कथा कहूचे तार क्यूरियोसिटी रो कथा कहूचे तार इंटरेस्ट रो कथा कहूचे दैट मींस ऑप्शन डी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट स्टूडेंट मोटिवेशन स्टूडेंट preparedness student curiosity to learn a new topic or new content तो ऑप्शन डी तुमन पिले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पिले a student excel in science but struggle with creative writing assignment
This suggests difference in readiness related to ପିଲାଟା ସାଇନ୍ସ ରେ ଭଲ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି କୋଉଥିରେ ନା ରାଇଟିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରେଡିନେସ ରେ ଇଟ୍ସ ବିକଜ ଅଫ ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ସ ବିକଜ ଅଫ ହିଜ ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ହୁଏତ ତାକୁ ରାଇଟିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟା ଭଲ ନ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ରାଇଟିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇ ସ୍କିଲ ସେ ଡେଭଲପ ନ କରିଥାଇପାରେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ୍ସେଲ ଭଲ କରୁଛି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାର ସ୍କିଲ ଆଧାରରେ, ଆଉ ରାଇଟିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରେ ଭଲ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 6 प्ले when a young child starts asking frequent questions about the world around them it could be a sign of a ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ young ପିଲାଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ପିଲେ ଆନ୍ସର କର ପିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢୁଛି, ତାର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢିଛି, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ବଢୁଛି, that means ତାର readiness ଟା ମଧ୍ୟ increase ହେଉଛି। so it increase readiness and curiosity to learn new things। option A ତୁମମାନଙ୍କର correct answer। question number 7 ପିଲେ providing opportunity for students to self assess their learning can benefit readiness by ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦଉଛେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କେମିତି ରେଡିନେସ କୁ ପିଲା ବେନିଫିଟ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସେସ୍ କରିବ, learner can identify areas of improvement, ତାର କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତାର କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର ସେ ଜାଣିପାରିବ। so far option B ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ correct answer, helping students to identify their needing improvement, କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ and adjust their learning approach ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ବା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। क्वेश्चन नंबर 8 पिले a teacher incorporates metacognitive strategies into their lesson plan encouraging students to reflect on their own learning processes। this approach aims to ଏ ଯୋଉ metacognitive strategy କୁ टीचर କଣ କଲେ incorporate କଲେ ତାଙ୍କ lesson plan ରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ encourage କଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର own learning process ଉପରେ reflect କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ metacognition ଆସୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି metacognition is the cognition about cognition is the knowledge about knowledge କଥା ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ own learning ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ reflect କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଆପ୍ରୋଚର ଏମ୍ସ କଣ ପିଲେ? ପିଲା କେତେ ତାର ସେଲ୍ଫ ଆୱାର ଅଛି ତାର ଲର୍ନିଂ ଉପରେ, ତାର ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ କେତେ, ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ୍ସ କେତେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିପାରିବ। ସୋ ମେଟାକଗ୍ନିଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଡେଭଲପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆୱାରନେସ as well as self regulation skills related to learning। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पिले a student feels anxious about participating in class discussion due to fear of a public speaking। this situation highlights the importance of addressing ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା anxious feel କରୁଛି କାହିଁକି, କାରଣ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା fear of public speaking ବା ତାକୁ ଭୟ ଲାଗେ ଯାଇକି ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ ରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବା ପାଇଁ ଫିଅର କରୁଛି, ଭୟ କରୁଛି, anxious feel କରୁଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ କଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା ପିଲେ? ଆନ୍ସର କର ପିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯାହା ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, ତାର ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ ଲର୍ନିଂ ଅଛି, we needs to highlight, we needs to address that problem କି ପିଲାର ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ, ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଡିସନ କୋଉ ଭଳିଆ, ତାର ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ ଲର୍ନିଂ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଜର ଦବା ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ତାର ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ କରିବାର ଯୋଉ ଭୟ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ହଉ ପବ୍ଲିକରେ ହଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବା ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଫିଅର ବା ଆଂସିୟସନେସ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା। क्वेश्चन नंबर 10 प्ले research suggests that interleaving the practice of studying multiple related concepts at once can be more effective than studying them isolation। interleaving ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ integrating, ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କନସେପ୍ଟ କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିଦଉଛେ
ताहले सेटा अधिक फलप्रद होची अधिक इफेक्टिव होची यदि आइसोलेशन में पढुचे ता अपेक्षा इंटरलिविंग बा इंटरकनेक्टेडनेस बा इंटीग्रेशन रे सेटा अधिक इफेक्टिव हबो दिस इज बिकॉज इंटरलिविंग काहे की बिले एटा अधिक फलप्रद हबो आंसर करो बिले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पिले कारण इंटरलिविंग इंटीग्रेशन बा इंटरकनेक्ट कनेक्टेडनेस कोन करूची पिले ना हमर कोन करूची डिफरेंशिएट करिया पे हमको हेल्प करूची इनफॉरमेशन को रिट्राइव करिया पे हेल्प करूची जले बहुत सारा कांसेप्ट होची ता भीतर रिलेशनशिप हो ता डिफरेंशिएशन हो हमें इजीली प्ले ता कर परिया तो तुम माने केवल मन रखो इंटरलिविंग माने इंटरकनेक्टेडनेस इट मींस इंटीग्रेशन इट मींस ओवरऑल होल कथा हमें कहूचे Question number 11. A student enjoys open-ended discussions and projects that allow for creativity and exploration. This could indicate a preference for ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ ଡିସ୍କସନ ବା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କାମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଏବଂ ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ ଡିସ୍କସନ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହାକୁ ଆଲାଉ କରୁଛି ନା ଇଏ ସୃଜନଶୀଳତା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିର କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କନଭରଜେଣ୍ଟର ଥିଙ୍କିଂ କଥା କହିବା ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଙ୍କିଂ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ତମେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଥିଙ୍କିଂ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଥିରୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବା ସ୍ପେସିଫିକ ବା ମୋଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ବେଷ୍ଟ ଆଇଡିଆଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିପାରିବ ତ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର Question number 12. Imagine a classroom with students from various socio-economic backgrounds. Some students might have limited access to educational resources at home. How can a teacher address this disparity and promote equitable learning conditions? ପିଲେ ବଢିଆ क्वेश्चन टे आंसर करो ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ତାଙ୍କର ଘରେ ସେଇଭଳିଆ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ତ ଟିଚର ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍ପାରିଟି ଅଛି ଆକୁ କେମିତି ପିଲେ ଆଡ୍ରେସ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବା ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଆନ୍ସର କର ପିଲେ ପିଲା ପାଖରେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ତାର ଆବିଲିଟି ଯୋଉ ଭଳିଆ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡେ ତାକୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ କଣ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡାଇଭର୍ସ ନିଡ୍ କୁ ଆମେ କ୍ୟାଟର କରିପାରିବା ବା ଡାଇଭର୍ସିଟି କୁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ କରିପାରିବା so far option D ତୁମଙ୍କର correct answer the teacher needs to provide differentiated instruction as well as resources in order to cater or in order to address diverse needs ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର need ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର condition ଅଛି ଯଦି ଆମେ approach ରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ multifaceted approach we have to apply multifaceted approach বা differentiated approach ତ ମାନେ କହିପାରିବୁ Question number 13 play. A student is more likely to be intrinsically motivated to learn a topic if they perceive it to be କେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ intrinsically motivated ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ perceive କରିବେ କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ meaningful ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ interesting ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା intrinsically motivated ହେବେ internally motivated ହେବେ ତ option A ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ correct answer personally meaningful and connected to their interest Question number 14 ପିଲେ Maturation refers to maturation କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝେ ପିଲେ ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ maturation ର ତାର ମିନିଂ ଟା ମନେ ରଖିବ based on ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି heredity so unfolding genetic predispositions ଆମେ କହିପାରିବା option D ତୁମମାନଙ୍କର correct answer Question number 15 ପିଲେ A baby develops the ability to crawl before learning to walk ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ଶିଖିଲା this sequence is primarily influenced by ଏ ଯୋଉ sequence ଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏଟା ଆମେ କହିପାରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ
आग पिला आमे कहूचे बसिबो गुरुंडिबो तापरे चालिबो तापरे छिडा हबो तापरे छिडा हला परे चालिबो चालिबा परे दौड़िबो ए जो सीक्वेंस टा इट फॉलोज मैच्यूरेशन आमे कहूचे मैच्यूरेशन ऑफ द नर्व सिस्टम एंड मस्कुलेचर ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 पिले identical twins raised in different environments tend to share many physical similarity जो identical twins आमे कहूचे से आइडेंटिकल ट्विन्स जेतबळे सेम जेंडर जोडा तुमने कहूचो पुओ पुओ किबा झियो झियो जोडा कहूचो से माने डिफरेंट एनवायरनमेंट से लालन पालन हेले भी तुम देखिबो से माने भितर अनेक फिजिकल सिमिलारिटीज आमे देखियो पाइथो तो एटा कहार इन्फ्लुएंस को सजेस्ट करूची दिस इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स एंड मैच्योरेशन तो तुमनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 प्ले a student in middle school excel at memorizing historical dates but struggles with abstract philosophical concept historical date को memorize करके मन रखी दउची किंतु abstract philosophical concept जेंति कि हम कहे beautiful beauty कि मु कहबी गोटे जेतबे philosophical term गुडा कहूची से philosophical term गुडा abstract term गुडा बुझिया पई से struggle करूची this is because of what this is because of a lack of intellectual maturation आमे कहि परिबा कि जदि मैच्योरेशन ता इन्फ्लुएंस निश्चित भाବରେ करूछ तार कॉग्निटिव एबिलिटीज को बा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग को जोटा कि लेटर एज रे तार डेवलप हेता है हमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कथा कहूचे हमें हाइपोथेटिकल रीजनिंग कथा कहूचे आमे एनालॉजिकल रीजनिंग कथा कहूचे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा कहूचे एडा सब आमे कह ना आउट हायर लेवल रे जे पिला एई कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा को शो करथाय से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर जेहेतु ये मिडिल स्कूल कथा कहिची तेणु करी एई समय निश्चित भाବରେ प्रॉब्लम होबा स्वाभाविक कारण सेति परिमाण मैच्योरेशन तार हेई न थाए क्वेश्चन नंबर 18 पिले while maturation sets the limits for what learner can achieve टीचर कैन स्टिल प्ले ए क्रुशियल रोल पिले मैच्योरेशन कोन करे लिमिट सेट करे कि लर्नर को वर्तमान समय तार मैच्योरेशन अनुसार तार लेवल अनुसार से कोन अचीव करि परिबो कि टीचर मध्ये गोटे क्रुशियल रोल प्ले करि परिबो आदर कोटा गोटे एस्पेक्ट बा स्टेटमेंट जोथरे टीचर गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करि परिबो हमें सेभला लर्निंग एक्सपीरियंस बा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिबा जोथरे कि सेटा तार लर्निंग को सपोर्ट करिवो तार लर्निंग को हेल्प करिवो किंतु सेटा मैच्योरेशन रो फ्रेमवर्क भितर होथिबा दरकार तो ऑप्शन बी तुमन प्ले करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्ले which of the following is the first step in Garner's conditions of learning गार्ने कर जो प्ले conditions of learning रहला से conditions of learning रे आदर कोउटा गोटे तुमन कर प्ले हमें कहि परिबा फर्स्ट स्टेप गार्ने कर प्ले जो conditions of learning रहला से conditions of learning रे कौन प्ले कंडीशंस ऑफ लर्निंग तुमन अछि गार्ने करो आंसर कर प्ले 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस मन अछि तुमन कर प्ले जोतरा हमें कहउतले गेन अटेंशन इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग प्रेजेंटिंग स्टिमुलस प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस एलिसिटिंग परफॉर्मेंस जोटा प्रैक्टिस तो माने कहउतला प्रोवाइडिंग फीडबैक असेसिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर तो एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर हला तुमनकर लास्ट तो फर्स्ट टा कोन ना गेन अटेंशन तो ऑप्शन सी तुमन रेडी प्ले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 प्ले व्हाट डज मैच्योरेशन रेफर टू इन चाइल्ड डेवलपमेंट रे मैच्योरेशन रो अर्थ प्ले कोन परिपक्वता कहले तुमने कोन बुझछो ना एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एट स्पेसिफिक स्टेजेस आमे कहै गोटे पिलार केते दक्षता अछि गोटे स्पेसिफिक स्टेज रे से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करि परछि कि नाही सेत पय देखले एज स्पेसिफिक डेवलपमेंट कि सेही एज रे सेही स्टेज रे से सेही भले डेवलपमेंट तार हेछि कि नाही तो ऑप्शन बी तुमन पे प्ले करेक्ट आंसर पिला में मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 50 को सारिले तो 50 नंबर मॉक टेस्ट रे तुम माने केतेटा करेक्ट आंसर कल 20 रु सेटा तुम माने मेंशन करिवो ता सहित जोडी तुम माने किछि समस्या अछि बा डाउट अछि ताले तुम माने मध्य कमेंट बॉक्स रे पछारी परिवो ता सहित आमे जिबा नेक्स्ट तुम माने मॉक टेस्ट नंबर 51 एथर मध्य तुम माने आमे 20टा क्वेश्चन को कवर अप करिवा ताको आमे एक्सटेंशन करिवा
जदि भी कहार कोड बिले डाउट रहउची त माने पछारी परिबो एवं शेषरे तुम माने निश्चित भाव मेंशन करिवो कि तुम माने 20 रु केतेटा करेक्ट आंसर तुम माने अटेम्प्ट करलो ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 1 पिले मैच्योरेशन इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय पिले मैच्योरेशन कहा द्वारा प्रभावित होता है आंसर कर पिले मैच्योरेशन इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी ओनली ठीक है पिले मु तुमको पढैतली कहिछि कैरेक्टरिस्टिक मैच्योरेशन इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रैक्टिस ट्रेनिंग यार कौन प्रभाव पकाए ना मैच्योरेशन ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैच्योरेशन इज नॉट ट्रू आदर को स्टेटमेंट पे मैच्योरेशन को आधार करी ट्रू नुहे आंसर करे पिले मैच्योरेशन गोटे अनकॉन्शियस प्रोसेस मैच्योरेशन गोटे अनकंट्रोल प्रोसेस मैच्योरेशन ऊपर हमर किछि कंट्रोल नाही हमें चाहिले अटकी परिबानी हमें चाहिले ताको बढ़ाई परिबा नाही तो ऑप्शन बी टा तुम मानकर एटा कोन ना एटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे क्वेश्चन नंबर 3 पिले गैरी एंड किंग्सले डिफाइन मैच्योरेशन एज गैरी और किंग्सले पिले मैच्योरेशन को केम भाबरे डिफाइन करिसंती एटा गोटे डेफिनेशन तो मन रखियो मैच्योरेशन is behavioral change due to physical growth तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 प्ले मैच्योरेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब मैच्योरेशन को हमें केम भली भाबरे भलो भाबरे डिस्क्राइब करि परिबा केम भली भाबरे भलो भाबरे वर्णन हमें करि परिबा आज ऑटोमेटिक और नेचुरल प्रोसेस फॉर बिहेवियरल चेंज ये व्यवहार परिवर्तन पाई गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस बा गोटे नेचुरल प्रोसेस स्वाभाविक प्रक्रिया को हमें कहि परिबा ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर मैच्योरेशन गोटे लर्न स्किल नुहे कि गोटे रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन नुहे कि गोटे कॉन्शियस प्रोसेस नुहे क्वेश्चन नंबर 5 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली describes the relationship between maturation and learning आदर कोउटा पिले लर्निंग और मैच्योरेशन रो रिलेशनशिप को भलो भाबरे दर्शाउची एक्यूरेटली दर्शाउची मैच्योरेशन रो कोनोसी इंपैक्ट न था लर्निंग ऊपर पिले लर्निंग कैन फुल्ली कंपेंसेट फॉर ए लैक ऑफ मैच्योरेशन मैच्योरेशन प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर लर्निंग सर्टेन स्किल मैच्योरेशन कोन करे लर्निंग पई फाउंडेशन प्रोवाइड करे मैच्योरेशन हेल्प्स इन लर्निंग मैच्योरेशन क्रिएट्स ए कंडीशन फॉर लर्निंग मैच्योरेशन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट बेसिक कंडीशन हमें कहि परिया फॉर लर्निंग जदि पिलार मैच्योरेशन पूर्वरु हमें इफ लर्निंग प्रीसीड्स मैच्योरेशन देन वी कैन से इट इज द वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम पिला मैच्योर हेनी हमें ताको सिखौचे गोटे जिंस को ताले हमर पैसा जीवो हमर अर्थ जीवो हमर समय भी नष्ट हो किंतु मैच्योरेशन हैला पर जदि हम ताको पढेइबा ताले कोन करिवो पिला भलो भाबरे पढि परिबो स्पीडली पढि परिबो क्विकली पढि परिबो ताले मैच्योरेशन कोन करे ना लर्निंग पई गोटे फाउंडेशन क्रिएट करे लर्निंग पई गोटे बेस क्रिएट करे तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पिले a child's ability to crawl is primarily a result of चलिबा गुरुंडिबा चलिबा दौड़िबा it's because of what it's because of maturation it's because of natural physical development बात हम कोन कहउछे maturation बोली कहउछे स्वाभाविक शारीरिक विकास क्वेश्चन नंबर 7 पिले which of the following is an example of learning not maturation आदर कोउटा पिले लर्निंग रो गोटे एग्जांपल तो मानको शिक्षण रो गोटे उदाहरण कोउटा पिले टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स गोटे ऑब्जेक्ट्स को धरिबा एटी तुम मानकर हमें कहउछे यदि तार मैच्योरेशन न होबो सेमती हैंड आई रो कोऑर्डिनेशन न होबो एटी मैच्योरेशन रो कथा कहउछे चलिबा दौड़िबा एटी मैच्योरेशन रो कथा कहउछे नहीं पॉवर्टी हासिल करिया पवंड हासिल करिया बा फिजिकल मैच्योरेशन होबा बा रिप्रोडक्शन करिवार एबिलिटी प्राप्त करिवा ये मैच्योरेशन रो कथा किंतु गोटे नुवा लैंग्वेज मु चाइनीज सिखिबी मु बंगला सिखिबी मु एबे तुम मानकर पाकिस्तान रो लैंग्वेज गोटे सिखिबी तो एटा तुम मानकर कोन निश्चित भाबरे एटी तुम मानकर लर्निंग रो कथा कहउछे एटी मैच्योरेशन रो कथा ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर पाकिस्तान रो कथा कहला तो माने समस्त रागी जाउथिबो सर चलन तो युद्ध करिवा निश्चित भाबरे तो
भारतीय सेना पे निश्चित भाव में तुमर समस्त बेस्ट विशेष रहा दरकार आम तो ये घरे बसचे क्लास करुचे आम मान क्यारियर चिंता करुचे से निश्चित भाव में लड़ुंट बॉर्डर पाखे रही आम मान सुरक्षा करुँच तो तुमको भी क्लास करुचे कि मन आ हृदय निश्चित भाव में मोर से तुम मैंने भी पाठ पढ़ा सहित बेस्ट विशेष निश्चित भाव रखि आम भारतीय सेना मान सेना प्रत्येक सैनिक जीवन आम मूल्यवान आउ सर्वोपरि हूँ कौन आमर देश तो तुम मान पाखे किसी कंट्रोलेबल तुम मान हाथ में ना तुम मैंने नहीं बेसी ओरिड हम पाठ पढ़ी किसी करनी किसी तुम मान फायदा हम ना तो तुम मैंने जी कंट्रीब्यूट करने कथा तुम मैंने करूथ किंतु तुम तुम पाठ पढ़ा प्रति फोकस कर आउ एबे खाली तुम बेस्ट विशेष दे पार दरकार पड़े से तुम कौन कर गोटे अलग कथा किंतु एबे एबे तुम पढ़ा पढ़ा को फोकस करने सहित बेस्ट विशेष आम सैनिक मान दौथा क्वेश्चन नंबर 8 पिले द वर्ड मोटिवेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ब मीनिंग टू मूव को लैटिन वर्ड रू पिले मोटिवेशन टा आसी मोटिवेशन टा मूव रे शब्द रू आसी मूव रे अर्थ टू मूव जोटा हम कहछे गतिशील करबा कि जोटा हमको गतिशील कराए टू मूव इन ऑर्डर टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हमर जा उद्देश्य अछि लक्ष्य अछि ताको हासिल करबा पई हमकु जे गतिशील करउछि ताको हम अभिप्रेरणा बा मोटिवेशन बोली कहउछे क्वेश्चन नंबर 9 पिले अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो ब्रूम्स करा मुझे पढ़े के असली तुम को व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन जो तीनटा फैक्टर मोटिवेशन करे तुम को कहतली गोटा हला एफर्ट परफॉर्मेंस आ गोटा हला आउटकम एक्सपेक्टेशंस ठीक है बोले तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 पिले द कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन व्हिच फैक्टर पिले कंटेंट थ्योरी को फैक्टर ऊपर गुरुत्व आरोप करिथाय कंटेंट थ्योरी एको नीड थ्योरी भी तो मानक कहथली इंटरनल नीड एंड डिजायर्स ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पिले which of the following activities most likely driven by intrinsic motivation आदर को एक्टिविटी टा पिले इंट्रिंसिक मोटिवेशन भीतर हम कहि परिबा आसुची बा इंट्रिंसिक मोटिवेशन द्वारा परिचालित तो पेरेंट्स कहले बोली तुम गोटे स्पोर्ट्स खेलुछ ताले एटा एक्सटर्नल हम कहि परिबा नहीं तुम पार्ट टाइम जॉब करछ कारण तुम गोटे फोन टे दरकार एटा एक्सटर्नल हम कहिबा तुम गोटे नुवा लैंग्वेज को लर्न करछ काहे कि एटा तुम मानको फैसिनेटिंग तुम मानको पई एटा गोटे इंटरेस्टिंग तुम मानको पई एटा गोटे हम कहि परिबा गोटे तुम भलो लागुची क्यूरियस तुम मन लर्न करिया पई सो फार एटा तुम मानको रासियो कोथरे ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन भीतर क्वेश्चन नंबर 12 प्ले What is the key characteristics of intrinsic motivation पिले आदर कोटा गोटे intrinsic motivation रो पिले characteristics आंसर कर पिले intrinsic माने कोन तुम एन्जॉय करथो एन्जॉयबल तो मन पई प्लेजरेबल तो मन पई तुम भलो लागुथिबो द परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर इट्स इनहेरेंट एन्जॉयमेंट कारण हम माने ता पछर थिबा एन्जॉयमेंट रो कथा कहउछ तो ऑप्शन बी तुम मन कर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 पिले स्टडीिंग फॉर गुड ग्रेड्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन हमको गुड ग्रेड दरकार हमको गोटे रिवार्ड दरकार हमको गोटे प्लेलिस्ट दरकार तो ये भाव में तुम एक्सटर्नाली मोटिवेटेड ये कहूँ तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तुम ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 पिले व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स और अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट तो को प्रकार मोटिवेशन टा हमर बाह्य किछि रिवार्ड बा पनिशमेंट को भय करके हम से कार्यटा करिथाउ हमको पनिशमेंट मिलियो से कार्यटा हम करबानी हे हमको चॉकलेट मिलियो चल हम सब कामडा कर दबा तो एटा एक्सटर्नल मोटिवेशन बा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 15 पिले स्किनर व्यूज मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ अ motivation as a process of a dash as per the view of B.F. Skinner ना एटा होछि कोन ना arousing persisting and directing desirable behavior ऑप्शन सी तुम मन रखले करेक्ट आंसर तो एटा मन रखिबो क्वेश्चन नंबर 16 पिले एटा भी तुम मन रखिबो गिलफोर्ड डिफाइन्स मोटिवेशन एज एन इंटरनल फैक्टर दैट ता कोन करथा यूज इंटरनल फैक्टर दैट directs and initiates activity
तो आम गोटा तुमको मुझे 3टा डेफिनेशन रे कहली कि मोटिवेशन गोटे इंटरनल फैक्टर जोटा कि रेगुलेट करे, एनर्जाइज करे, डायरेक्ट करे बिहेवियर को। तो सही दृष्टिकोण तुम मैंने ये डेफिनेशनटा भी मन रखिदेव। गोल सेटिंग थ्योरी बाय लॉक emphasizes the importance of what? The goals should be specific, challenging and achievable. Option B तुम्हारा correct answer. Question number 18 पे Maclan rule question. Maclan theory of need proposes 3 core motivating needs which describes the desire for competition and achievement. Maclan करो नीड थ्योरी 3टा कोर नीड कथा से कहउचंती। तो आधु को नीडटा कंपटीशन और अचीवमेंट ओरिएंटेड, अकम्प्लिशमेंट ओरिएंटेड, मास्टरी ओरिएंटेड, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड ना सर अचीवमेंट नीड। ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। देखि दियो प्ले एफिलिएशन नीड्स हैला डिजायर फॉर कनेक्शन, बिलोंगिंगनेस, नो लव कथा हमें कहउचे। पावर नीड्स हैला कि डिजायर फॉर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर अदर्स कथा कहउचे। ठीक है ना? এই তিনটা জিনিস তো মনে କହିଛନ୍ତି ম্যাকলাইন মনে ରଖିବ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ନିଡ୍ସ, ପାୱାର ନିଡ୍ସ ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ। Question number 19 equity theory of Adams suggests that individuals strive for fairness, ତାଙ୍କୁ କାମରେ fairness ଦରକାର, equitable treatment ଦରକାର in the workplace, what might lead to decreased motivation? ଆଦର କୋଉଟା ତାଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ କୁ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ as per the view of equity theory? যদি ফেয়ার সমস্ত ঠিক দরমা মিলা সমান ভাবে সমান বেনিফিট মিললা তাহলে তো এটা নিশ্চিত ভাবে মোটিভেট করে, কারণ সে ফেয়ারনেস র কথা কହୁଛନ୍ତି। perceiving others are getting rewarded more for similar work, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ରିୱାର୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଡିମୋଟିଭେଟ କରିବ ବା ତାଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ କୁ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ। ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 20 प्ले motivation is an internal feelings that influences, motivation is an internal state, internal feelings with a driving force which influences what? Which influences human behavior in general आमे कहि परिबा। ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। पिले आमे तुमनकर मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 51 वर्तमान आमे सारिले। 51 रो 20टा क्वेश्चन डिस्कशन करले। 20 रु तुम माने केते स्कोर कलो सेटा ही मेंशन करबा सहित जदि तुम मानकर कोट भी डाउट रहिछि ताहले तुम माने पचारि परिबो कमेंट बॉक्स रे। ठीक है पिले ता सहित आमे एबे जिबा 52 को कवर अप करबा। एथर मते तुम मानकर 20टा क्वेश्चन पिले अछि, इंपोर्टेंट 20टा क्वेश्चन को भलो भाबरे पढिबो, भलो भाबरे बुझिबो। डाउट रहले तुम माने मते कमेंट बॉक्स रे ड्यूरिंग प्रीमियर समय रे पचारि परिबो। ता सहित एई 20टा क्वेश्चन तुम माने केतेटा करेक्ट कलो सेटा मते मेंशन करिवो। ठीक है पिले चलो आमे तुम मानकर मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 52 स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले मोटिवेशन इज, मोटिवेशन प्ले कोन आदर कोटा गोटे स्टेटमेंट जोटा मोटिवेशन को भलो भाबरे डिफाइन करूछि आ मोटिवेशन नेचर को डिफाइन करूछि। मोटिवेशन प्ले गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस, गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, प्रत्येक स्टेज रे प्रत्येक एज रे हमको मोटिवेशन आवश्यकता पड़ी थाए एंड व्हिच इज एसोसिएटेड विथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को मोटे मेंटल स्टेट बोली कहूछे, गोटे मेंटल स्टेट बोली कहूछे, गोटे इंटरनल स्टेट बोली कहूछे, आ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बोली हम कहूछे। तो ऑप्शन सी तुमन को प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज गिवन द हायरार्की ऑफ नीड्स और हायरार्की थ्योरी प्ले, हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन कहार प्ले सर अब्राहम मास्लो कर नहीं मैक्लान कर प्ले कोन मैक्लान कर तमन मन रखिबो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हर्जबर्ग कर टू फैक्टर थ्योरी आउ व्रूम्स कर प्ले कोन ना एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ विक्टर व्रूम्स। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, को थ्योरी टा प्ले सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन ओरिएंटेड तुम मान करो एटा तुम मास्लो करो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ऑप्शन बी तुम मान करो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 प्ले which among the following theories can be considered as an extension of Maslow's need hierarchy theory? मु तो मानको भी बुझाइछि कि आदर को थ्योरीटा मास्लोंकर नीड हायरार्की थ्योरी रो एक्सटेंशन, आल्डरफोरंकर ईआरजी थ्योरी तुमनकर मास्लोंकर थ्योरीकर एक्सटेंशन। ई रे जो तुमनकर मु कहिथिली तुमनकर एक्जिस्टेंस नीड्स, आर रे रिलेटेडनेस नीड्स, जी रे ग्रोथ नीड्स,
एक्जिस्टेंस नीड्स रे मास्लोंकर दीटा नीड्स को एटी मर्ज करा गला गोटे हला तुम मानकर फिजियोलॉजिकल नीड्स आ उठला सेफ्टी नीड्स सेमती रिलेटेडनेस नीड्स से तुम मानकर दीटा नीड्स को मर्ज करा गला लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स प्लस एस्टीम नीड्स सेमती ग्रोथ नीड्स हला तुम मानकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो ऑप्शन ए तुम मानकर प्लेड करेक्ट आंसर क्वेश्चन 5 प्ले इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम कोथरा हमर प्ले इंट्रिंसिक मोटिवेशन टा आसी थाए ना इट्स कम्स फ्रॉम इंटरनल सैटिस्फैक्शन ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 प्ले इक्विटी थ्योरी सजेस्ट इंडिविजुअल्स कंपेयर देयर इक्विटी थ्योरी प्ले तार इंडिविजुअल्स का सहित कंपेयर करि थाए ना मु केते इनपुट्स दोछि मते को भली आउटकम्स मिलुछि आउ जणको से भली आउटकम्स मिलुछि ताठर अधिक मिलुछि सो इट टॉक्स अबाउट इनपुट्स एंड आउटकम्स फेयरनेस ट्रीटमेंट कथा हमें कहूचे क्वेश्चन नंबर 7 what is the term for the optimal level of arousal for a task optimal level of arousal कथा हमें कोन कहूचे पहिले कोथरा हमें कहूचे ना डॉटसन लॉ पिले ऑप्शन बी तुम्हारा एरकेस एंड डॉटसन लॉ रे हमें कहूचे पिले जदी हमें कहूचे तुमानकर इंटरेस्ट ता तुमानकर इच्छा ता तुमानकर अराउजल ता जदी बढ़िबो से अनुसार तुमानकर कोन मोटिवेशन ता ही बढ़िबो किंतु अराउजल ता जतबे ऑप्टिमल लेवल को पळेबो से ऑप्टिमल लेवल रे तुमानकर मोटिवेशन ता सबुठ हाई थिबो जदी ऑप्टिमल लेवल रो आहुरी इंक्रीज करूची तुमानकर अराउजल ता ताहले तुमानकर मोटिवेशन ता डिक्रीज करके जाजिबो तो मन रखिथिबो एटा एरकेस एंड डॉटसन लॉ पिले ऑप्शन बी तुमानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पिले social learning theory suggests that observing successful role models can increase एटा आंसर देख देथिबो आराम से तुमने करि दबो social learning theory पिले कोन सजेस्ट करूची जब हम सक्सेसफुल रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करिवा देन सेटा मानकर मोटिवेशन एवं सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाइबो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 पिले मैकलेंड्स ट्राइपार्टिक model of needs identifies which of the following तो मैकलेंड ग्रुप ले जो ट्राइपार्टिक मॉडल ऑफ नीड्स बा नीड थ्योरी आधरु कोटा पिले कहार को नीड्स कथा से कहूची अचीवमेंट एफिलिएशन आउ पावर नीड फॉर अचीवमेंट नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर Question number 10 when extrinsic rewards undermine intrinsic motivation it is called play बढ़िया क्वेश्चन टा when extrinsic rewards undermine intrinsic motivation धरो मु इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड अछि कोन ना मु सब बेले संतोष सर क्लास करबी संध्या समय रे 8टा बेले 8टा 8:30 कि 9टा भीतर सर क्लास टा हबो मु निश्चित भाବରେ करबी सब बेले मोटिवेटेड अछि माने मु इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड मते भल लागुछि मते इंटरेस्ट लागुछि सर क्लास टा मु 8टा बेले क्लास करली दिने सर गले मते गटे चॉकलेट देले तापर न आउट बड़ चॉकलेट देले तापर न क्लास करली आउट चॉकलेट देले एबे जो मु क्लास करथि मोर इंटरेस्ट थला से इंटरेस्ट कोन हला से जो इंटरनल मोटिवेशन थला सेटा अंडरमाइन हे गला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ओरिएंटेड मोर कामटा हे गला तो मु एबे मो इंटरेस्ट पई क्लास करनी क्लास काहे करछि ना मते चॉकलेट मिलियो बोली बुझा पड़छि तो कि तुमे जतो गोटे काम कर गोटे पेंटिंग टे मु करली से पेंटिंग टा मु करथि मते भल लागथला मु इंटरेस्टेड थली जतो पेंटिंग टा करली मते 100 टका देला पुनी मु पेंटिंग करली मते 500 टका देला पुनी पेंटिंग करली मते 1000 टका देला ताले कोन हबो मो जो इंटरेस्ट थला पेंटिंग करथि मु इंटरनल जो मोटिवेटेड थली सेटा अंडरमाइन हे गला एबे एक्सटर्नल मोटिवेशन मते पैसा ओरिएंटेड मु हे गली कारण पैसा मिलियो मु पेंटिंग करिवि बुझा पड़ला तो एडी कोन होची ना एक्सट्रिंसिक जो रिवार्ड्स रहिला सेटा हमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अंडरमाइन कर दोची जोटा को हमें कहूचे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर मन रखथिबो एटा को ओवर जस्टिफिकेशन हमें कहूचे dash is the set of forces that energizes direct sustain regulate behavior आद्रु कोटा गोटे सेट ऑफ फोर्स हमें कहिबा जोटा बिहेवियर को एनर्जाइज करूची निर्देश करूची सस्टेन करके रखुची रेगुलेट करूची सर मोटिवेशन ऑप्शन ए तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 प्ले which of the following statements regarding internal process of motivation is it true
इंटरनल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को आधार करी को स्टेटमेंट पिला ट्रू अछि बा ठीक अछि जेमिति एक्सटर्नल फोर्स गुडा हम पई गुरुत्वपूर्ण सेमिति इंटरनल फोर्सेस गुडा मध्य हम पई गुरुत्वपूर्ण सो फार ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर दे आर as important as external forces of motivation. Question number 13 पिले which of the following is not an internal motivational factor आदर कोटा गोटे internal motivational factor पिले नुहे हमर गोल नीड्स एटीट्यूड्स ये सब इंटरनल मोटिवेशनल फैक्टर्स फीडबैक ता हमको आउ जने किए दबो तो फीडबैक ता हला कोन ना एटा हला एक्सटर्नल ठीक लागले क्वेश्चन नंबर 14 पिले which of the following is not a push force of motivation पिले दीटा फोर्स अछि हमर गोटे गोटे हला पुश फोर्स आ गोटे हला पुल फोर्स पुश फोर्स को हम कोन कहै पिले ना एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल आ पुल फोर्स को हम कहै छै इंटरनल ठीक है तो एट देछि which of the following is not a push force of motivation आदर कोटा गोटे पुश फोर्स नुहे पिले ना द अमाउंट ऑफ टाइमिंग एंड फीडबैक एटा हला एक्सटर्नल फीडबैक कथा कहै माने एक्सटर्नल कथा कहै ठीक है पिले कि मु फेल हेबिनी बोली मु पढिबी मते गोटे एक्सटर्नल रिवार्ड पाई मु पढिबी तो पुल हला एटा होची इंटरनल आमे कहै एटा होची हमर नीड ओरिएंटेड इंटरेस्ट ओरिएंटेड आमे हमर कैरियर पे पढुचे हम एप्टीट्यूड अनुसार हम पढुचे ठीक है तो ऑप्शन डी तुमकर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 dash focuses on the needs of a person is trying to satisfy and the features of the work environment that seem to be satisfy those needs आदर पिले नीड ऊपर कोटा बेसी फोकस करूची कि गोटे पर्सन से नीड को फुलफिल करे को ट्राई करूची कि नीड को सैटिस्फाई करे को ट्राई करूची सो को थ्योरी तुम मानकर नीड थ्योरी तो कमे कहउतले कंटेंट थ्योरी को मैं नीड थ्योरी कहउचे मोटिवेशन मन रखिबो नीड थ्योरी इज आल्सो नोन एज कंटेंट थ्योरी वेयर द इंडिविजुअल ट्राई टू फुलफिल हिज नीड्स क्वेश्चन नंबर 16 पिले टू बिगिन मोटिवेटिंग एन apathetic associate a manager informally questions her about her satisfaction with her job's ability to provide safety, social interaction, self-respect, opportunities for growth. What theory of motivation is this manager most likely trying to apply in working with the associate? गोटे associate को motivate करिया पाई तो उसे पचारुची क्वेश्चन करूची कि तार satisfaction कोथरे कारण से प्रोवाइड कर परिबो सेफ्टी प्रोवाइड कर परिबो सोशल इंटरेक्शन हो सेल्फ रेस्पेक्ट हो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ हो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथा कहला सेल्फ रेस्पेक्ट कथा कहला एस्टीम कथा कहला बा हमें कहूचे सेल्फ एस्टीम कथा कहला सोशल इंटरेक्शन फैमिली कथा कहला सेठी लव एंड बिलोंगिंगनेस कथा कहला सेफ्टी कथा कहूचे थोड़ा हमें कहूचे फिजियोलॉजिकल नीड्स कथा कहूचे बा सेफ्टी नीड्स तबर असला फिजियोलॉजिकल नीड्स कथा हमें कहूचे तोळे हमें अवश्य एटी मेंशन करिनी किंतु हमें जो यदि बॉटम रु जीवो बॉटम रु गोटी को छाड़ दे आ सब जंग नीड सेडी मेंशन करे छै सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स एस्टीम नीड्स और सेल्फ एस्टीम नीड्स देन तुमनकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो एटा कोथे तुमनकर अछि ना मास्लो कर हायरार्की ऑफ नीड्स ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 प्ले which of the following is not a content theory आदर कोटा पिले content theory बा कोटा need theory कोटा नहे मोटिवेशन रो मास्लो कर हायरार्की ऑफ नीड्स हॉसबर्ग कर टू फैक्टर थ्योरी मैक्लेन कर एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी किंतु ब्रूम्स कर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एटा कंटेंट थ्योरी नहे क्वेश्चन नंबर 18 पिले according to Friedrich Horsper dash are elements associated with conditions surrounding the job condition कथा पिले कहला वर्किंग कंडीशन हमें कहूचे वर्किंग कंडीशन टा को बोले सैलरी वर्किंग कंडीशन सेफ्टी एटा सब का भीतर आसीबो ना एटा हो हाइजीनिक फैक्टर भीतर आसीबो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर अकम्प्लिशमेंट अचीवमेंट रेस्पेक्ट एगुडा मोटिवेटिंग फैक्टर्स भीतर आसीबो क्वेश्चन नंबर 19 प्ले while they agree that satisfaction is a factor in motivation scholars note that there is a little evidence that increasing employee satisfaction actually increases motivation. This has led them to criticize dash as being overly simplistic. आदर को थ्योरी को स्कॉलर्स माने ताले क्रिटिसाइज करचंती कि जो थ्योरी हमें कहउतले जदी से सैटिस्फाइड थिबो ताले हेडा इंक्रीज करियो तार मोटिवेशन को. तो एटा को थ्योरी पिले तुम मान करा मु तो माने कहितली
कि दीटा कथा में कहबा गोटे कथा कोन ना आमे हाइजेनिक फैक्टर रे कोन करथले वी प्रिवेंट्स डिसैटिस्फैक्शन आ गोटे कोनथले मोटिवेटिंग फैक्टर रे मोटिवेटिंग फैक्टर आमे कोन करथले ना इट लीड्स टुवर्ड सैटिस्फैक्शन कि सैटिस्फैक्शन हेले तार मोटिवेशन टा बढ़िबो तो एटा में टू फैक्टर थ्योरी का हॉर्संकर तुमनकर हाइजेनिक मोटिवेशन थ्योरी रे कहउतले तो एटा को से हाइजेनिक मोटिवेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करके कहउछथि तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 प्ले dash asserts that individuals are likely to compare the ratios of inputs to outputs they receives against the ratio of their other people such as colleagues or acquaintances प्ले जो acquaintance गुडा हमकु मिलुची जो पैसा हमकु मिलुची जो रिवार्ड हमकु मिलुची आमे जो इनपुट दउचे ठीक है ला जो रेशियो रे आमे इनपुट दउचे जो आउटकम्स मिलुची अदर मानकु जो भलिया मिलुची हमकु सेही भलिया मिलुची तो फेयरली हमकु मिलुची तो रिवार्ड हो एक्विटेंसेस हो जहां भी हो तो फेयरनेस रो कथा कहउचे इक्विटेबल रो कथा कहउचे तो हमें काहा कथा कहउचे ना इक्विटी थ्योरी कथा हमें कहउचे ठीक है ला तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले हमें तुमनकर मॉक टेस्ट नंबर 52 को एबे सारिले जदि तुमनकर कहार भी कोठी डाउट थिबो ताल तो माने पछारी परिबो निश्चित भाबे चेष्टा करी क्लैरिफाई करिया पई जदि ए जो 20टा क्वेश्चन तो माने अटेम्प्ट कलो ए 20टा क्वेश्चन केतेटा क्वेश्चन तो माने करेक्ट कलो सेटा भी तो माने मेंशन करियो निश्चित भाबरे नेक्स्ट जिबा पिले मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 53 को एथरे मध्ये हमें आउ 20टा क्वेश्चन को डिस्कशन करिवा तार एक्सटेंशन करिवा जदि एई सीरीज रे मध्ये कार कुछ डाउट रहला तो माने ड्यूरिंग प्रीमियर समय पछारी परिबो किंबा तो माने एइथरे केते स्कोर करूछो सेटा मध्ये निश्चित भाबरे तो माने मेंशन करियो ठीक है पिले क्विकली हम जिबा मेथड को जीवा मेथड गोटे कंडीशन फॉर लर्निंग हमें पढुथले टास्क एंड मोटिवेशन तो टास्क एंड मोटिवेशन रे किछ क्वेश्चन को मध्ये कवर कर दवा क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट कांसेप्ट एनकंपासिंग द ओवरऑल वे ऑफ एड्रेसिंग ए प्रॉब्लम ओवरऑल वे तक हमें कहूचे तक हमें ओवरऑल फिलोसॉफिकल आइडियाज भी कहिबा तक हमें गोटे ब्लूप्रिंट बोली कहिबा तक हमें गोटे गाइडलाइंस फ्रेमवर्क बोली कहिबा तक हमें गोटे सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम बोली कहिबा का बोली कहिबा ना सर हमें अप्रोच कहिबा अप्रोच ला छोटू ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म ओवरऑल आइडिया फिलोसॉफिकल आइडिया सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम गाइडलाइंस फ्रेमवर्क ताकू आधार करी हमें मेथड आउ टेक्निक्स गुडा को डिसाइड करू तनु करी ए जो आइडियाज गुडा रहला सबुठार ब्रॉडर जदी हमें देखिबा सबुठार ब्रॉडर हैला कोडा ना सर अप्रोच अप्रोच भितर गुडा सब तमानकर आसीबो यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहूचे ता भीतर तमानकर बहुत सारा मेथड आसी जीवो तमे यदि n नंबर ऑफ मेथड्स को प्रोजेक्ट मेथड को तो माने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कवरी मेथड को से डिस्कवरी मेथड तो माने बहुत सारा टेक्निक को मध्ये अप्लाई करि परिबो बहुत सारा प्रोसीजर को मध्ये अप्लाई करि परिबो क्वेश्चन नंबर 2 पिले the most specific and focused element dealing with a particular skill or tool यदि मोर स्पेसिफिक या मोर फोकस्ड हम देखिबा एतिको एस्पेक्ट भितरे हम का से जिबले जिबा ना टेक्निक होची मोर स्पेसिफिक मोर हम कहबा फोकस्ड जोटा कि गोटे टूल तक हम कहि परिबा गोटे पर्टिकुलर एस्पेक्ट कहि परिबा गोटे मेथड को फॉलो करि के एटा प्रिपेयर करा जाय थाय ठीक है पिले हम ग्रुप डिवाइड करिबा ग्रुप को टास्क दबा विभिन्न प्रकार टेक्निक समय व्यवहार करथाउ हम मानकर डिजायर्ड गोल को अचीव करिया पे क्वेश्चन नंबर 3 पिले imagine you want to write a research paper your overall plan to gather information and analyze it would be your तुमे गोटे रिसर्च पेपर टे लेखिबा को ट्राई करूछ पिले ओवरऑल प्लान तुम मानकर मु तो मान कहितली ओवरऑल प्लान होलिस्टिकल प्लान कॉम्प्रिहेंसिव प्लान गोटे ब्लूप्रिंट बा गोटे गोटे फ्रेमवर्क एडो सब काहे भीतर आसीबो से गोटे सब अप्रोच भीतर आसीबो तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 प्ले when conducting a scientific experiment the specific tools पिले टूल्स आसिला माने तो माने काहे सते जीवो ना टेक्निक्स पाखु पळेबो when conducting a scientific experiment the specific tools and equipment used in the data collection process are considered जेतबेले हम गोटे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करूचे सेतबेले हम विभिन्न प्रकार टूल्स रे यूटिलाइजेशन करूचे
विभिन्न प्रकार इक्विपमेंट पे यूटिलाइजेशन कर डाटा कलेक्शन करबा पे तो से तुमरा टेक्निक्स भीतर आसी जिवो। क्वेश्चन नंबर 5 पिले which teaching method focuses on student led discussions and exploration of a topic आज को टीचिंग मेथड टा प्ले स्टूडेंट सेंटर्ड बा लर्नर सेंटर्ड हम कहि परिबा ना सर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हैला मोर स्टूडेंट सेंटर्ड बा मोर लर्नर सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 a method where students work together in small groups on a shared task is known as जेतबेले गोटे टास्क टा कॉमन टास्क हमें कोचे शेयर टास्क कोचे एवं स्मॉल ग्रुप रे से माने काम करथि से टास्क बा गोल को अचीव करिया पे तक हम कोन कहिबा ना कोऑपरेटिव लर्निंग कहिबा। In which method is the teacher presenting information in a structured way often using visual aids गोटे स्ट्रक्चर्ड वे रे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करंती टीचर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करिवे गोटे स्ट्रक्चर्ड गोटे सिस्टमैटिक वे रे कोथे बिले ना सर लेक्चर मेथड रे ठीक है ऑप्शन बी तुमन करेक्ट आंसर एगुडा को म एक्सटेंशन करबी नाही बारंबार एगुडा तुमन को पढेची तो माने थ्योरी क्लास रेफर करिया को निश्चित भाबरे क्लियर करियो बा क्लैरिफाई करियो लेक्चर मेथड कोन लेक्चर मेथड रे कोन कोन सो मेरिट्स अछि डिमेरिट्स अछि तार फीचर्स कोन ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 This method involves students using technology to access information and complete tasks before a class session. पिला मानकु recorded videos गुडाक recorded videos गुडाक बा विभिन्न प्रकार मटेरियल्स गुडाक पिला को प्रोवाइड करा जिवो पिला जायकि घरे होम रे ताको एक्सेस करिवे ताको देखिबे भलो भाबे बुझिबे देन क्लास को आसला पर ताको ओटिके डीप डेप्थ एंड इनसाइट वे रे एनालिसिस डिस्कशन करा जिवो एटा कोथरे ना तुमनकर फ्लिप्ड क्लासरूम रे ऑप्शन बी तुमनकर प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 प्ले in which strategy students analyze a real world situation and propose solution रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे मु तमन कहि कि केस स्टडी गोटे एमिति मेथड केस हिस्ट्री मेथड हमें कोचे व्यक्ति को अध्ययन पद्धति बा तू माने आगु कहि परिबो कि ये होची गोटे प्रकार घटना अध्ययन पद्धति जो थरे हमें कोन करू ना पिला को गोटे प्रॉब्लम दो गोटे इश्यू दो पिला रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट रे जाए वास्तव परिवेश रे निज को इमर्स कराए डाटा कलेक्शन करे आईडिया को आने की कोन करे कि कंक्लूजन गोटे विवृत्ति प्रदान करथाय तो एथरे एटा गोटे रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड बा रियल कॉन्टेक्स्ट रे करा जाउथिया गोटे एक्टिविटी गोटे कार्य जोटा कि लर्निंग बाय डूइंग बा तो मानकर हैंड्स ऑन लर्निंग को मध्यम प्रमोट करे। क्वेश्चन नंबर 10 दिस टेक्निक्स एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू जनरेट ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज विदाउट क्रिटिसिज्म generation of a large number of ideas spontaneously without any criticism कि सर लार्ज आइडिया को हमें जनरेट करिबा एवं से लार्ज आइडिया रो हमें कोन करिबा परवर्ती समय रे तादरु बेस्ट आइडिया को हमें बाछिबा जेतोले तुमन को एडी आइडिया जनरेट करिया पे फ्रीडम दिया होछ अपॉर्चुनिटी दिया होछ विदाउट एनी क्रिटिसिज्म ऑसबर्न करो कोथरे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक रे ऑप्शन बी तुमन करेक्ट आंसर। Question number 11 this student centered approach allow learners to progress at their own pace addressing individual needs पिले माने तांको ओन स्पीड अनुसारे तांको नीड अनुसारे आगो बढ़ी परिबे तो को प्रकार मेथड रे पिले आंसर करो पिले ना जेतोले नीड बेस्ड आसले ताले डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को तो माने जीवो ठीक है पिले कारण डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज addressing learning needs or individual needs of the learner by applying different style of instructional approaches or methods. Question number 12 play. This method focuses on building critical thinking skill through guided questioning. पिले को मेथड टा क्वेश्चनिंग ऊपर गुरुत्व आरोप करूची सर क्वेश्चनिंग कथा आसला माने हमें सॉक्रेटिक मेथड कथा जिबा तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। Question number 13 play. This blended learning approach combines teacher-led instruction by in-person learning and online learning with independent learning activities outside the classroom. तो teacher-led instruction with independent learning by in-person learning और online learning रो opportunity दोची by ये hybrid learning रो opportunity दोची by ये तो मन को blended learning रो opportunity दोची
कोडा ना हाइफ्लेक्स मॉडल बा को हाइब्रिड मॉडल मते तो माने कहि परिबो। क्वेश्चन नंबर 14, this method emphasizes hands-on learning experiences where students design and solve real world problems। ये hands-on learning बा problem solving learning बा जोग हमें कहूचे learning by doing जो थरे आमे activities माध्यम रे experiences करिबा निजे डिजाइन करिबा एवं रियल वर्ल्ड वास्तव परिवेश समस्या को समाधान करिबा। तो एटा को प्रकार रो पिले तुमनकर मेथड भीतर आसीबो। तो हैंड्स ऑन कथा कहला तो माने का जदी जियो पिले तुम एटी विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज करिवो जो पिला तुम माने डिजाइन करिवो आ प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो। तो ये ताले बेसी का फोकस करूची ना प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को फोकस करूची। तो ऑप्शन बी तुमनकर ए तुमनकर करेक्ट आंसर। तो माने बेसी कंफ्यूज होबनी कि सर एडी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देछि तो हमें केस स्टडी सहित भी जाई परिबु गोटे कथा हमें एडी भी कंसीडर करा जाई पारे कि जेहेतु एडी देछि अधिक कि हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस माध्यम रे पिला कोन करिवो डिजाइन करिवो प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो। तो एटी मोस्ट एप्रोप्रिएट तुमनकर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड लर्निंग हे करिवो। क्वेश्चन नंबर 15 प्ले, this cooperative learning approach involves dividing a topic into smaller sections for each student group to learn then present their findings to the class। क्लास रे पिला जो अछंती ताको हम करिवा ग्रुप रे किछ डिवाइड करतबा एवं छोट छोट स्मॉलर सेक्शन रे हमर कंटेंट को डिवाइड करदबा टॉपिक को। ए ग्रुप रे हम धर 5 जण पिला रखले ए ग्रुप रे 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 मध्ये 5 जण टॉपिक 5 जण पिला रखले 5टा टॉपिक दे टॉपिक 1 2 3 4 5 ठीक है। तो ए माने हले एक्सपर्ट ग्रुप ए एक्सपर्ट ग्रुप कोन कले ना स्पेसिफिक टॉपिक ऊपर ए माने सब लर्न कला परे ए जो एक्सपर्ट ग्रुप को जिबे ए एक्सपर्ट ग्रुप एक्सपर्ट हला परे जिबे तो ए माने जाय कि कोन करिवे ना जिक्सो ग्रुप फॉर्मेशन करिवे। तर ए ग्रुप रे अछंती 5 जण ए ग्रुप रो ए के आसिला ए एक्सपर्ट हेछि गोटे विषय ऊपर ए ग्रुप आ गोटे पिला आसिला ए ग्रुप रो आ गोटे पिलाटे आसिला ए ग्रुप रो आ गोटे पिलाटे आसीबो ए ग्रुप रो आ गोटे पिलाटे आसीबो। तो जो नुवा ग्रुप फॉर्मेशन हला प्रत्येक ग्रुप रे कोन हबो ना सब गोटे गोटे एक्सपर्ट आसी गले कि ये ए कंटेंट रो एक्सपर्ट से कंटेंट रो एक्सपर्ट से कंटेंट रो एक्सपर्ट ये प्रश्न उत्तर कोन करबे डिस्कशन करिवे प्रश्न उत्तर आलोचना करिवे। एडाला जिक्सो ग्रुप बा जिक्सो एक्टिविटी जका में कहूचे। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले, which method involves students working on an extended projects to explore a topic and develop their knowledge and skills। तो एटा प्रोजेक्ट ऊपर काम करे देछि तो मानु कहा तो माने क्वेश्चन एडी खोजिबो ऑप्शन कोथरे ना प्रोजेक्ट मेथड ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, in which method students presented with a problem and encouraged to find a solution through trial and error experimentation and a critical thinking। आंसर कर बिले आधुर को मेथड रे हम पिलां को प्रॉब्लम दोछे एवं तांको एनकरेज करूछे कि तुम माने सॉल्यूशन फाइंड आउट करो ट्रायल एंड एरर थ्रू रे हो एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू रे हो क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू रे हो। तो ह्यूरिस्टिक मेथड इज आल्सो नोन एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं ताको डिस्कवरी मेथड को जे पिला डिस्कवर करिवो। तो ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज, व्हिच मेथड एम्फसाइजेस टीम वर्क shared responsibility and achieving a common goal through open communication and share decision making। जो share decision making आसिला open communication आसिला common goal रो कथा आसिला टीम वर्क रो कथा आसिला ए जो सब पॉइंट रा तमांकर कहा सहित ना कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड सहित एसोसिएटेड। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज, the project method typically involves which of the following steps। आजु कोटा गोटे प्ले प्रोजेक्ट मेथड रो स्टेप्स भीतर तमांकर आसीबो ना स्टूडेंट ड्रिवन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज, a teacher uses open ended questions and encourages students to explore different approaches to a problem। this aligns with which method। जेतबेले टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चन को कोन करूचंती व्यवहार करूचंती ओपन माने जोटा खोला प्रश्न गुडी को हम कहे मुक्त प्रश्न गुडी को एवं एनकरेज करूचंती स्टूडेंट मानकू कि से माने डिफरेंट अप्रोच को एक्सप्लोर करिवे गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पाए। तले एटा को मेथड सहित जडित पिले को मेथड सहित संपर्कित आंसर करो।
ना एटा तुमनकर ह्यूरिस्टिक मेथड सहित जड़ित ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग आसला ह्यूरिस्टिक मेथड को तुम माने जीव प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कवरी फाइंडिंग आउट न्यू थिंग्स એટલે ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 53 କୁ କଭର ଅପ୍ କଲେ 53 କୁ ପିଲେ କଭର ଅପ୍ କଲେ 53 ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ତୁମମାନେ ପଚାରି ପାରିବ ତା ସହିତ ଯୋଉ 20 ଟା क्वेश्चन कवर अप कले तुमମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋର ରହିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପିଲେ मेंशन करिवो ଆମେ ଯିବା ପିଲେ ଆଜିର ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଲାଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ सीरीज 54 जोथरे मध्ये आमे 20 टा क्वेश्चन को कवर अप करिवा जहार पिले जोथरे डाउट रहउची तमने ड्यूरिंग प्रीमियर समय पचारि परिबो किंबा तुमने क्लास सरला परे मध्ये कमेंट बॉक्स लिखि परिबो ता सहित केते तुमने स्कोर करूछो MMT 54 रु सेटा मध्ये मेंशन करिवो क्वेश्चन 1 पिले कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग व्हिच स्किल को स्किल रो डेवलपमेंट रे कोलैबोरेटिव मेथड ता तुमनकर हेल्पफुल हेताय पिले आंसर करो पिले जो आम कम्युनिकेशन करूचे टीम वर्क कथा कहूचे शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कथा कहूचे कॉमन गोल रो कथा कहूचे आ द्वारा कोन बना टीम वर्क कम्युनिकेशन स्किल हमर बढ़िबो नहीं ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पिले ए की बेनिफिट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड गोटे ह्यूरिस्टिक मेथड रा बेनिफिट पिले कोन आंसर करो पिले ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड मध्ये करिथो डिस्कवरी मेथड माने पिला डिस्कवर करिवो तार क्रिएटिविटी बढ़िबो एक्सप्लोरेशन एबिलिटी बढ़िबो तो ऑप्शन बी तुमका करेक्ट आंसर एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन नंबर 3 प्ले द मेथड ऑफ फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस इज जेतबेले हमें एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मेथड कथा कहूचे तो को मेथड को पिले हमें चूज करबा कि हमें फाइंडिंग्स रो कथा कहूचे अनुभूति माध्यम रे तो माने ऑप्शन डी ह्यूरिस्टिक मेथड बा डिस्कवरी मेथड को हम एठी तुमनकर मोस्ट एप्रोप्रिएट भाव रे नै परिबा ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पिले कार्ल रोजर्स हैज डिस्क्राइब्ड कांसेप्ट ऑफ कार्ल रोजर पिले को अप्रोच को सपोर्ट करचंदी सर कार्ल रोजर कर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑप्शन सी तुमनकर पिले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पिले constructivism is a theory that equates learning with creating meaning from constructivism पिले जो theory टा तो मनकर कि हमें learning रे कोचे meaning making करिबा so meaning टा को थ्रू क्रिएट करिबा सर थ्रू एक्सपीरियंस और फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑप्शन बी तो मनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पिले which of the following is an advantages of a lecture method रा कोटा गोटे पिले advantages सर lecture method रा भी advantages अछि निश्चित भाव अच्छी पिले कौन आंसर करो पिले टीचर को फुल कंट्रोल थाए लेसन को ट्रांजैक्ट करिया पे लेसन को डिलीवर करिया पे फुल कंट्रोल माने कोन क्लासरूम टा डिसिप्लिन रहि परिबो आउ कोन ना लार्ज कंटेंट को से कवर कर परिबे कम टाइम रे पिले अधिक कंटेंट को पढ़ी परिबे टाइम कम जीवो अधिक कंटेंट भी सरी जीवो नहीं तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तुमन टिके देखि रखिबो टीचर को टोटल कंट्रोल ले थाए टाइम सेव हुए गोटे वाइडर टॉपिक बा अधिक कंटेंट को हम एथरे कवर कर पारू टीचर एक्टिव एथरे पार्टिसिपेंट थांती बा टीचर गोटे एनर्जाइज तरे थांती तुम लेक्चर मेथड रे आउ प्रेजेंटेशन माध्यम रे तुमनकर टीचर कोंदी कि एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन दरकार सुडा प्रेजेंटेशन करथांती बहुत सारा आइडियाज एका गोटे शॉर्ट टाइम रे अल्प समय भितर तुमन प्रेजेंट कर जाय पारे आउ गोटे टॉपिक को चाहू हम इंट्रोड्यूस करिया पई ताले लेक्चर मेथड हतळे बेस्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन मा टॉपिक को स्टार्ट करिया पहले लेक्चर मेथड टा कहै जाय गोटे बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग देन डिसएडवांटेजेस कोन येला टीचर सेंटर्ड टीचर डोमिनेंट रोल प्ले करंदी लर्नर पैसिव रिसिपेंट केवल पैसिवली रिसीव करंदी निष्क्रिय भाव सुनि थांदी वन वे कम्युनिकेशन एडी कम्युनिकेशन केवल टीचर कहंदी तुम माने सुनि थाओ नहीं लर्नर माने टीचर को ऊपर डिपेंडेंट थांदी टीचर पढेले ही पिला पढिबे इंडिविजुअल नीड्स को फोकस करे नाही पिला मानकर पार्टिसिपेशन बा इन्वॉल्वमेंट को गुरुतर करे नाही पिला माने एडी पैसिव लर्नर थांदी बा लर्निंग टा गोटे पैसिव लर्निंग थाए क्वेश्चन नंबर 8 प्ले सिंस क्लासरूम नॉर्मली मींस ए ग्रुप द टीचर शुड अडॉप्ट व्हिच अप्रोच यदि क्लासरूम हमें कंसीडर करबा एज ए मीन ऑफ अ ग्रुप ताहले हम मानकु ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच को अप्लाई करिया पड़िबो ग्रुप डिस्कशन टीम वर्क रा कोन फोकस करिया पड़िबो क्वेश्चन नंबर 9 प्ले वेयर द साइज ऑफ द क्लासरूम इज मोर
द मेथड ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू बी यदि क्लासरूम रो साइज टा अधिक अछि अधिक पिला अछंती हमर तो एथिक्स वैल्यू रो क्लास हुए एथिक्स आ वैल्यू रो सेतले क्लासरूम रे साइंस आर्ट्स पिले समस्त रे थांती मु एथर को एग्जांपल पिले दउची कि मु कोन माने तंटीटा बसी गलानी मु सेति बेलु तुम मानकर प्राय 2 घंटा हबो कथा होची कंटीन्यूअसली क्लास टा तो तंटीटा मोर बसला बढिया गेला जेतले मु तुम मानकर एनवायरमेंटल एजुकेशन रो क्लास नउथली तो मानकर मल्टी डिसिप्लिनरी क्लास टा साइंस और आर्ट्स पिलांगर क्लास एथिक्स वैल्यू रे साइंस और आर्ट्स पिला क्लास बहुत सारा पिला तो सेमान को हम एक्सपेरिमेंटेशन करी पढिबा प्रोजेक्ट मेथड रे पढिबा एटा भारी डिफिकल्ट हबो सेमान को हम कोन करिबा ना लेक्चर मेथड पढे परिबा तो मन करी लार्ज ऑडियंस जदि थिबे ताहले हमरो लेक्चर मेथड हला बेस्ट मेथड ऑप्शन ए तो मानकर करेक्ट आंसर ए एडवांटेजेस तो मानु देखो मु तो मानु कहिथिबी ठीक है पिले ऑप्शन ए लास्ट देखो हेल्पफुल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक स्टूडेंट्स उठिया से मानको पे हेल्पफुल वाइडर टॉपिक को कवर करिया पे हेल्पफुल टाइम कम थिबो टाइम सेव करिया पे हेल्पफुल ठीक है शॉर्टर टाइम रे हमें मल्टीपल आईडिया बहुत सारा आईडिया को मध्ये एथरे कवर अप कर परिबा क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज all of the following increases the effectiveness of the teaching except आदर सब सब जाक ऑप्शन गुड़ाक ना तुम टीचिंग रो इफेक्टिवनेस को वृद्धि करि थाए को ऑप्शन टा टीचिंग रो इफेक्टिवनेस को वृद्धि करि न थाए हमु सेटा बाछिया पड़िबो टीचर वॉइस गेस्चर आउ तांकर पर्सनालिटी कि टीचर रागटा कोन वृद्धि करिवो तकरी ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 when two or more than two students join together to achieve some specific objective in a class it involves जेतबे टू और मोर टीचर आमे कहूचे तो से माने जॉइन करूचंदी कि गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करिया पय तले हम कोन कहबा ना टीम टीचिंग आमे कहि परिबा ऑप्शन डी तु माने करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज who said a project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment project होची गोटे whole-hearted purposeful activity who is the founder of project method अच्छा W.H. Kilpatrick option A तुमनकर correct answer question number 13 प्लीज which of the following is true according to constructivist perspective प्ले कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव को आधार करी आदरु कोउटा गोटे तमनकर ट्रू स्टेटमेंट बा ठीक स्टेटमेंट लर्नर सबले कंस्ट्रक्टिविस्ट अनुसार सबले एक्टिव पार्टिसिपेंट थाए लर्नर टेक केयर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से सब टीचिंग लर्निंग रे जत्न से नबो बा से ता दायित्व वहन करिवो लर्नर्स बिकम एंगेज्ड पार्टिसिपेंट्स लर्नर्स होची एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बा हेतरे से इन्वॉल्व रहिबो से एंगेज्ड रहिबो ठीक है ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर आ गोटे कथा तो माने एडी एई पॉइंट रो गोटे कथा कहूची तो माने मन रखियो कि हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे मोर फोकस करबा लर्निंग ऊपर रादर देन टीचिंग गोटे पॉइंट कहती तो माने मन थिबो फोकस ऑन एल रादर देन टी कि हमें लर्निंग को फोकस करबा टीचिंग को नहीं क्वेश्चन नंबर 14 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फसाइजेस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा पर गुरुत्व करथाय बोले आंसर करो चाइल्ड सेंटर्डनेस कथा कहउचे माने हम एडी रीच रो कथा कहबा टच रो कथा कहबा टीच रो कथा कहबा तेड करी ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज द इंस्ट्रक्शनल मेथड इन व्हिच ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट लर्निंग असाइनमेंट इज नोन एज जेतबेले ग्रुप ऑफ लर्नर वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट लर्निंग असाइनमेंट जेतबेले ग्रुप वर्क प्ले होचे तो कोथरे आसीबो तुम मानकर टीम वर्क होचे कोऑपरेटिव लर्निंग ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर कोऑपरेटिव लर्निंग तो माने प्ले देखि रखिबो एग्जांपल्स कोन कोन भीतर आसीबो पीयर सपोर्ट कथा कहउचे ग्रुप वर्क कथा कहउचे रोल प्ले टास्क कथा कहउचे इक्वल बेस ग्रुप कथा कहउचे जिक्सो मेथड कथा कहउचे थिंक राइट पेयर एंड शेयर कथा कहउचे ठीक है आसु बेनिफिट उडा तुम देख परतो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेबो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन रो बा स्किल्स को डेवलपमेंट करिवो लीडरशिप स्किल को बढ़ेबो रेस्पोंसिबिलिटी शेयर रेस्पोंसिबिलिटी बा आईडिया में निश्चित की गोटे कार्य को मथे करि परिबा इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करिवो आ पेशेंस आ कोऑपरेशन स्किल मथे बढ़ेबो ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 16
which of the following is not a group activity that a teacher can conduct in a class आदर कोटा गोटे प्ले ग्रुप एक्टिविटी तर आसीबो नाही रोल प्ले एबे पढौथिल तमन को तम देखि के आसलो जिक्सो पजल डिस्कशन रीडिंग लाइब्रेरी बुक ए गोटे ग्रुप एक्टिविटी तर आसीबो तो ऑप्शन डी तुमन को करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 प्ले प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग को भले गोटे प्ले अप्रोच ना ये तुमन को गोटे लर्नर सेंटर्ड बा ये गोटे शिक्षार्थी केंद्रित उपागम Question number 18. All of the following are steps in a project method except अदर कोटा गोटे प्रोजेक्ट मेथड रो स्टेप्स प्ले नो है प्रॉम्प्टिंग प्ले आछि प्रॉम्प्टिंग गोटे स्टेप्स प्लान करिबा कोई सिचुएशन को क्रिएट करिबा प्रॉब्लम को सिलेक्शन करिबा ठीक है ना स्टेप देख रखियो प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन सिलेक्टिंग एंड प्रपोजिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग द प्रोजेक्ट executing the project evaluating the project then recording ठीक है प्ले क्वेश्चन नंबर 19 प्ले in 5P approach of lesson planning at which point do the learners begin to put their experiences into a communicable form प्ले जेतबेले 5P approach कथा कहूचे lesson planning रो 5P माने 5टा E रो कथा कहूचे 5E E रे हला तमानकर engage ई रहला तमानकर एक्सप्लोर ई रहला तमानकर एक्सप्लेन ई रहला तमानकर एलाबोरेट ई रहला तमानकर इवैल्यूएट ठीक है प्ले जेतबेले गोटे लर्नर बिगिन टू पुट देयर एक्सपीरियंसेस इनटू ए कम्युनिकेबल फॉर्म तांको एक्सपीरियंस को से माने वर्णना करचंती कोथरे ना एते आसीबो एक्सप्लेन रे ठीक है प्ले एंगेज रे हमें तांको फास्ट कोन करिबा पिलां को ट्राई करिबा पाठ पढ़ा सहित एंगेज करिया पई प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन तांको पचारिया पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्न पचारिबा चित्र देखाइबा नाचिबा कुदिबा जहा करिया से माने एंगेज हेबे प्रथमे एंगेज हला पर से मानु कमे कोन करिबा ना ग्रुप कर दबा तांको कहबा एक्सप्लोर करिया पई से माने ग्रुप हे कि एक्सप्लोर करिवे से टॉपिक ऊपर तापर से माने आसी कम्युनिकेशन करिवे तापर एक्सप्लेन करिवे तो ऑप्शन बी तो मानकर राइट करेक्ट आंसर देखिए बोले एंगेज रे कोन करिवे स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड विथ चैलेंजिंग सिचुएशंस प्रायर नॉलेज इज एक्टिवेटेड क्वेश्चंस आर प्रोवोक्ड देन एक्सप्लोर कोन करिवे ना स्टूडेंट माने इन्वेस्टिगेट करिवे से माने आईडिया को खोजिवे फाइंड आउट करिवे तापर एक्सप्लेन रे पिला कोन करिवे से न्यू नॉलेज गुडा को गेन करले ताको एक्सप्लेन करिवे ताको वर्णना करिवे एलाबोरेट कोन करिवे अहरी मोर डीप एड को जिवे मोर एक्सटेंशन एड को जिवे जदि किछि डाउट रहला प्रॉब्लम रहला ता टीचर ताको क्लैरिफाई करिवे आ इवैल्यूएशन तुम जानि छु असेस करिवे ताकर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 20 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिक्चर ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आदर कोटा गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रो प्ले गोटे पिक्चर बा गोटे स्वरूप लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एक्टिव लर्निंग कथा में कहूचे नहीं तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर अब हम आगो को जिबा नहीं तो प्ले तुम मानकर आजिरो जो असाइनमेंट थिला आजिरो 7 टांग मॉक टेस्ट हम एडी कवर अप कले बहुत सारा एरिया प्ले कवर अप कले मोटिवेशन रो कवर कले थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कांसेप्ट ऑफ मोटिवेशन मैच्योरेशन मैच्योरेशन एज ए कंडीशन ऑफ लर्निंग मोटिवेशन टास्क मेथड्स रेडीनेस तुम मानकर लर्निंग थ्योरी रो किछि कांसेप्ट अप्रोच मेथड्स टेक्निक्स बहुत सारा एरिया कवर अप हिची और विश्वास तुम मानन को ए क्लास बहुत ही भल लागिवो आ तुम मानन को क्लास निश्चित भाबरे हेल्पफुल हे परिबो तो आजिरो क्लास को हम एडी प्ले एंड करूचे तो माने भलो भाबरे प्रिपरेशन करो जदि तुम मानकर कोडी समस्या रहउची डाउट रहउची तो मान निश्चित भाबरे पछारी परियो प्ले ठीक है प्ले आ जो माने व्यस्त होचो सर एग्जाम पूर्वरु हमरो सिलेबस सरियो कि नाही बा क्वेश्चन प्रैक्टिस सरियो कि नाही सब प्रकार चेष्टा करी प्ले सारिबा पई छुट्टी देबी मु ए पर्यंत तुम मानकर एथि अछि क्लास तुम मानकर करूची ए पर्यंत मु भी तुम मान सहित एग्जाम दउची तो माने भाबी रख खरा रे ठीक है समस्त को अगेन आउट ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल